सुनाई ना देती है, connectivity issues. So any kind of a connectivity issues, you don't have to worry about anything. आपको चिंता की जरूरत नहीं है. आप जिस भी WhatsApp ग्रुप में रहे होंगे, तो उस WhatsApp ग्रुप में भी आपको रिकॉर्डिंग का लिंक मिलेगा. So you can hear it after this session is over as well, if you miss something. So don't worry about any of those things. उसकी चिंता ना करें. So I represent a firm called Yellow Squash. I am one of the co-founders of Yellow Squash. Yellow Squash क्या है और क्या करता है, वो थोड़ा सा मैं आपको introduction देना चाहता हूँ. So Yellow Squash is into online group wellness programs. हम लोग health bound programs कराते हैं. हमारा main काम, हम aggregator हैं. We are aggregators, so we aggregate different kinds of solutions. So, for example, all of this in alternate practices. So, the one thing that we are, and collectively, this is something which more and more of us are getting familiar with, acquainted with, and we are able to understand कि ये चीज हमें माननी भी चाहिए और कोशिश करके करनी भी चाहिए, जहां तक कर सकें, which is staying away from pharmaceutical drugs. So, Yellow Squash only ambition is to help achieve a pharma-free or medicine-free life, which can take care of. Now, pharma is very important and very critical in many ways. Symptomatic treatment के लिए, emergency situations के लिए, surgeries के आगे पीछे and all of that. So all of that is there. But to manage chronic conditions, pharma may not be the right answer. That is what we are trying to tackle and answer. Now, when you're thinking about heart का situation हो, या BP जैसे कई लोगों ने कहा, या diabetes का situation हो, cholesterol का issue हो, etc. When we are talking about chronic conditions, then management के लिए drugs लेना is not the right solution. And we tackle many other such chronic conditions, wherein we try and develop programs which specifically understand the problem. The experts understand the problem. They have delivered onto the solutions. We develop the program in such a manner that you can consume it while sitting at home. घर से बैठ के आराम से आप कर सकते हैं. आप वो सारे benefits ले सकते हैं जिसके लिए इधर-उधर जाना वैसे भी आज के दौरान में मुश्किल हो चुका है. So given COVID times, you can consume whatever expertise our experts have, while sitting remotely from your home, your mobile phones, your laptops, and all of that. So, we develop programs with our experts. We check. We have a 16-point check to verify, validate, and test the efficacy of the program. Program कितना effective है, लोगों के testimonials, ये सारी चीजें हम करते हैं, so that you interact with the best solution possible, at least in the country, if not on earth. So one of the best solutions, if not the best solution, but definitely one of the best solutions. So that is one thing. The second thing, again, we help design program in such a manner that you can, consume from home. Third thing, that we make sure that you are very well informed before you spend a single dime. एक रुपया या एक पैसा भी खर्च करने से पहले इस तरह के वेबिनार्स हम कंडक्ट कराते हैं. व्हाट्सएप के ग्रुप्स के थ्रू आप लोगों ने हमसे इंटरेक्ट किया है. So that is where we keep sharing a bunch of information. And then we also, in case you are interested, we also get into a lot of conversations with you to make sure that you're fully informed and you're well aware of what you are getting yourself into. So all of that is what we do. And finally, once you are in a program, we do have a paid program, by the way, towards the end. So there is a solution behind all of this ज्ञान. ये सारे ज्ञान के बाद में एक solution भी है जो हम बहुत ही डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे. Yes, it is a paid program. So if somebody is expecting a free solution, then this is not the right path. Maybe this is not the right session for you. So we would discuss about a program which can help you, which can benefit you, and so on. And in case you have any trouble within those programs, then we become an escalation point. So we are somebody which help you get the best possible experience during the program as well. So that is also something we try and ensure. Now, with that said, there are a bunch of programs which Kumbhak Therapy does. So let's talk about the reason why you are here. You are here because of Kumbhak, and you are here because of Kumbhak Therapy.
थोड़ा सा आप लोगों के सामने ये पोल शेयर करता हूं सो दैट आप सभी लोगों को भी थोड़ा जानकारी रहे कि आप सबके साथ में जितने ये कुछ मिनट शेयर करने वाले लोग हैं वो सभी लोग, आप सभी लोग किस तरह के सिचुएशन से डील कर रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल का इशू आधे लोगों को है, 3/4 लोगों को, 78% लोगों को बीपी का इशू है, हाई ब्लड प्रेशर स्पेसिफिकली। लो ब्लड प्रेशर किसी को नहीं है, थैंक गॉड फॉर दैट, but there are several other conditions which you have managed, mentioned rather, so we'll be talking about all of those conditions. इसके अलावा भी किसी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज ग्रुप चैट में मेंशन करें। I got stents implanted, so we will talk about stents also. We will talk about pacemaker also, sir. So we'll talk about all of those things. So you are at the right place. Now, how many of you have heard of Kumbhak therapy? And how many of you have heard of कुंभक? कुंभक शब्द कितने लोगों ने सुना है और कुंभक थेरेपी कितनों ने सुना है? प्लीज ग्रुप चैट में मेंशन करें। कुंभक थेरेपी की जानकारी आप लोगों को है क्या? डू यू नो व्हाट कुंभक थेरेपी इज? एक दूसरे तरह से इस सवाल को पूछता हूं, कुंभक को प्राणायाम के साथ में कितने लोग एसोसिएटेड? प्लीज टाइप इन यस इफ यू एसोसिएट कुंभक विद कुंभक प्राणायाम। Okay, so 3 people associate. Okay, holding breath after exhalation, yes. How many of you think? Okay, so we are getting a few responses, but बहुत कम response. जितने लोग हैं उस हिसाब से response नहीं है. So please make sure that you get a little more involved. आप लोग अगर अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं तो हम लोग भी काली स्क्रीन्स की बजाय इंसानों से इंटरेक्ट करेंगे। Okay, yoga, pranayam, etc. Okay, how many of you, one more question, an important question, very very important question, how many of you think अगर आपको हार्ट या बीपी का सिचुएशन है, हार्ट या बीपी का इशू है, तो आपको कुंभक या प्राणायाम या ब्रेथ होल्ड बिल्कुल नहीं करना चाहिए? प्लीज टाइप यस if you think that you should not be holding your breath if you're suffering from a heart condition, any kind of a cardiovascular issue or BP issue. Please type in yes अगर आपको लगता है कि you should not be combining the both. And please type in no if you think you can potentially, these two things can coexist and still benefit you. I'll be speaking in both the languages, Fatima ji, so don't worry. All speakers would be speaking in both the languages. So I'm glad to understand that most of you think that both these things can coexist. Now, this is what this entire session is all about. This session is about education. This session is about trying to understand what you can do to come out of your heart and BP situation. Now, on that note, मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस समय क्या कर रहे हैं अपनी हार्ट सिचुएशन को लेके। Are you taking medicines of different kinds? Are you into yoga? Are you into exercise, meditation? Surgeries अगर आपकी हुई हैं, stents आपके डले हैं, pacemaker डला है, सर आप प्लीज इन्वॉल्व होइए क्योंकि हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। कुछ लोगों ने पेसमेकर के बारे में कहा था, स्टेंट्स के बारे में कहा था। So please make sure so that we can address the entire audience in a fashion that addresses their queries and their concerns. Yes, तो सुभाष जी इसके बारे में भी बात करेंगे कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा कुंभक करने से। तो when you say कुंभक करने से, are you talking about कुंभक or are you talking about कुंभक प्राणायाम or are you talking about कुंभक थेरेपी? So what is, मैंने कई बार बोला कि ये क्या है, कुंभक क्या है, कुंभक थेरेपी अलग मैंने बोला, प्राणायाम अलग बोला, तो ये सारी चीजें अलग कैसे हैं या अलग हैं भी या नहीं है? ऐसे बड़े सारे कुछ सवाल आ रहे होंगे आप लोगों के मन में, एंड आई होप कि आ रहे हो आपके मन में। बाय द वे, प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप रिस्पॉन्डिंग टू द पोल्स। तो इन्हीं सब चीजों की जानकारी लेने के लिए लेट मी इंट्रोड्यूस नवनीत सर, यू आर देयर? Yes. Let me introduce Mr. Navneet Kapoor. Mr. Navneet Kapoor is one of the co-founders of Astika Kumbhak, which deliver a lot of programs for human health, Kumbhak therapy ke through. So there are a bunch of, just to give a little bit of introduction,
about Astika and about Kumbhak therapy. So there are bunch of programs that happen. डायबिटीज के हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, हार्ट और बीपी केयर के प्रोग्राम होते हैं, कैंसर के प्रोग्राम किए जाते हैं, थायराइड के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स. देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच हैपन थ्रू कुंभक थेरेपी. सो ऑल टुगेदर आई सपोज आई वुडंट बी रॉन्ग, नियरली अबाउट 50 के लगभग अलग अलग प्रोग्राम्स के बैचेस चल चुके हैं. And more than 2,000 people have joined these various programs in whether for diabetes and all of them. And as many as 78% बाकी किसी भी पद्धति में क्योर नहीं है, किसी भी तरह से क्योर नहीं. मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को कोई मना नहीं करता. आप अगर किसी को पैसे देंगे तो कोई मना नहीं करेगा पैसे लेने के लिए लाइफ लॉन्ग. सो मैनेजमेंट ऑब्वियसली है, बट क्योर की बात हो रही है यहाँ पे, एक ट्रीटमेंट की बात हो रही है which is full and final. So 78% of people have been able to cure themselves in varying degrees. तो उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे. So let me request Mr. Navneet to take over and just inform people about what Kumbhak and Kumbhak therapy is. Over to you, sir. Can you stop the screen share, please? Yeah. Okay. Namaskar. Good evening. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Are you able to listen to me? सभी लोग सीरियसली बैठे हुए हैं, क्या हो गया? इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है. आप लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो वो सोल्यूशन मिलेगा. सीरियस नहीं बैठे. और सभी लोग कैमरा ऑन करें तो कितना अच्छा रहेगा. और थोड़ा सीधा बैठें. सब लोग लेट के बीमार हो रहे हैं. सिर्फ बीमार लोग ही नहीं लेटते हैं, जो लोग लेटे रहते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं. दे ऑल्सो फॉल इल. ओके. So if you are here in the webinar, you have made the effort of registering on Facebook and then joining the WhatsApp group and you're looking for a solution. So it will be great if you participate because जहाँ live से participation कम होती है तो दुनिया में patients बढ़ जाते हैं. Okay. मेरा मतलब सिर्फ काम करने से नहीं है या हर रोज की चीजें करने से नहीं है. मेरा मतलब है being involved in the process of a wonderful opportunity that is life. Okay, like they always say, you only have one life, so at least decide how to live it well. Okay, you do not know whether you will get another one or not. So as far as we know, you won't. Okay, so on that note, I welcome all of you to the webinar, which is an intro webinar about an online course that we run. So who is this course for? ये course किसके लिए है? ये सभी उनके लिए है, whether you have BP, whether you have heart conditions, or in addition to that, in case you have in addition to BP and heart condition, let's say you also have, so many people are saying cholesterol. Somebody has said that I'm doing Kumbhak therapy and cholesterol has increased. Well, my friend, दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि एक्सरसाइज करने से किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है? आज तक नहीं हुआ है. So if your cholesterol has increased, I mean, are you keeping a daily track of cholesterol? We'll talk about it when you meet us in the batch. Okay. So cholesterol नहीं बढ़ता है. cholesterol जो बढ़ता है, there are various reasons for that. Maybe we'll touch upon that in the question answer session later on. So this is for people who have various condition. क्या जिसके हार्ट में सर्जरी हुई है या स्टेंट लगे हुए हैं या बाईपास हुआ है, क्या वो कुंभक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. मजेदार चीज ये है, द ग्रेट थिंग इज all of you are doing kumbhak on a regular moment to moment basis. Whenever you do something, you are using kumbhak, you are just not aware of it. Okay, you're just not aware of it. It is the body's natural trigger to build physical and mental strength. Okay, we are not bringing it up, we have not brought kumbhak therapy from a book or something. This is what your body does in any case. Okay. So there are also people who have some idea about kumbhak कि शायद ये ऐसा है, particularly people who do bit of yoga and no, you don't need to do 2 courses, Prakash Kuppuswamy. If you're doing 1 course, that course will take care of your condition, so do not worry about it. So who is this course for? There is only one condition required. Are you willing to work upon yourself? क्या आप अपने ऊपर काम करने को तैयार हैं? अगर आप अपने ऊपर काम करने को तैयार हैं, then this course is for you. It does not matter whether you are a man or a woman. Okay, it does not matter whether you are 35 years old
or 65 and plus years old. Okay, it does not matter. As long as you are willing to do, as long as you're willing to work upon yourself. People who are 70 years old, they also walk, no? They also climb stairs, right? So many of you I can see over here who are, who are labeled as citizens, senior class citizens, but some of you might be more lively than a 35-year-old person. Okay, it is quite possible to do that. So we will, what we will do, we will tell you about कुंभक. हम आपको कुंभक के बारे में बताएंगे, एक थोड़ा सा उसका सैंपल भी देंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम वेबिनार में जाने से पहले 2-3 सवाल मैं आपके दिमाग में पार्क करना चाहता हूँ. अपने दिमाग में 2-3 सवाल पूछिए. नंबर 1, क्या आपको मालूम है बीपी होता क्या है? सब लोग बोलेंगे ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर. अरे नापते तो आप अपना टिश्यू को दबा के हैं. आई मीन यू पुट दैट स्ट्रिप अराउंड योर आर्म एंड देन यू प्रेस योर टिश्यूज एंड योर सेल्स गेट also pressed. So where is the, how are you measuring the blood pressure? Number 2, do you know why you got into the BP or heart condition or both? Okay, you might have known कि blockage हो गया, ये हो गया, वो हो गया, but do you know why? क्यों हुआ? All right, this is a very important question. And second, third question, that all therapies that you are trying, आप जो भी try कर रहे हैं, वो सिर्फ level down करने की कोशिश करती हैं. None of them are aiming to increase the factor or increase the strength of the factor that helps you maintain BP. None of them are working on increasing the strength of your heart. आपके दिल को दोबारा मजबूत करने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है. Okay, so this webinar is for all such people and who are willing to work upon themselves. I will now stop over here. I'll hand over the session to Swami Raj Vibhu. Swami, on the face of it, is a person like you and me. He's a normal human being, but at another level, he's an extraordinary being with a unique capability. Because why? Because he has worked upon his life. He has invested his life in understanding human mechanics, कि हम बीमारियों में क्यों आ जाते हैं और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम बीमारी को वापस रीट्यून कर सकते हैं, वापस से रिवर्स कर सकते हैं. Okay, so I'll hand over the session to him. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? So BP and heart condition, they are not always related. ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को ब्लड प्रेशर है तो हार्ट डिजीज भी है. And usually blood pressure situations are temporary. Temporary होते हैं blood pressure situation, जिसे हम blood pressure कहते हैं. You know, when a woman is pregnant, अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है तो भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, isn't it? If you have kidney disease होगा तो भी ब्लड प्रेशर हाई होगा, isn't it? So if you have any organ failure, तब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है. If you are stressed out, then also your blood pressure will be a little high. So blood pressure may rise due to many situations. वो अलग अलग कारणों से भी बढ़ सकता है. ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज आर नॉट ऑलवेज रिलेटेड. हमेशा एक दूसरे के साथ में नहीं जुड़े हुए ये दोनों. ब्लड प्रेशर इज अ सेपरेट, एज अ डिफरेंट सिचुएशन. हार्ट डिजीज डिफरेंट सिचुएशन. सो मुझे एक चीज बताइए, टेल मी वन थिंग. बाय टेकिंग मेडिसिन, जो दवाई आप ले रहे हैं फॉर रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर, क्या आप अपने ब्लड प्रेशर को ठीक कर रहे हैं उससे? यू आर जस्ट ट्राइंग टू रिड्यूस इट डाउन. थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं, पर वो वापस आ जाता है ना. इट अगेन कम्स बैक. सो यू आर नॉट एड्रेसिंग द कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है इसको आप एड्रेस नहीं कर रहे दवाई खा के. विदाउट इवन मेडिसिन देयर आर मेनी वेज टू हैंडल ब्लड प्रेशर. बिना ये केमिकल दवाई के भी यू कैन ऑल्सो टेक सम हर्ब्स, isn't it? आप कुछ केमिकल दवाई के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, जड़ी बूटियां भी ले सकते हैं. They also reduce blood pressure. You can do something else also, physically, mentally, which can take a little care of blood pressure.
शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर थोड़ा कंट्रोल होगा. But why are you taking chemical medicines only? When you go to a doctor, doctor gives you chemical medicine. जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमेशा केमिकल मेडिसिन दे. Nobody is correcting you. कोई तो आपको ठीक कर नहीं रहा ब्लड प्रेशर. Not doctor, not even वैद्य, वो भी ठीक नहीं कर. Not योगा, मेडिटेशन, इससे भी ठीक नहीं हो रहा. थोड़ा कम हो जाता है, अगेन इट गोज अप. तो वन क्वेश्चन इज व्हाई यू शुड टेक जस्ट केमिकल मेडिसिन टू रिड्यूस इट. इफ यू आर नॉट करेक्टिंग योर ब्लड, अगर आप अपने जड़ को नहीं हटा रहे, इफ यू आर नॉट ट्रीटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द रूट, व्हाई यू आर टेकिंग जस्ट केमिकल्स ओनली. केमिकल्स ही क्यों लें, कुछ और भी कर सकते हैं. बट द रियल सिचुएशन इज, जो सही स्थिति ये है कि नथिंग इज क्योरिंग योर ब्लड प्रेशर. कोई भी चीज आपके ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं कर रहा. ये बात आपको समझना पड़ेगा. सेकेंड थिंग इज, दूसरी चीज ये, हाउ मेनी पीपल यूज्ड टू हैव हार्ट अटैक 100 years बैक. 100 साल पहले कितने लोगों को हार्ट डिजीज होता था? हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक एंड दोस काइंड ऑफ स्टफ. कितने लोगों को होता था? ना के बराबर. ऑलमोस्ट लाइक, ऑलमोस्ट नल, ऑलमोस्ट जीरो. So now it has become the number one cause of death in the world. दुनिया में हार्ट अटैक नंबर वन कॉज ऑफ डेथ, एक नंबर का बन गया. What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? हम जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं. अगर हम सही कर रहे होते, if you would have been doing correct, right, then heart attack episode would have reduced, heart disease would have reduced. हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक खत्म हो जाने चाहिए था. अगर ये बढ़ रहा है तो हम जो भी कर रहे हैं वो बढ़ा रहा है हार्ट एपिसोड्स को. Whatever we are doing is increasing heart episodes. ये आपको आंखें खोलनी पड़ेगी. You'll have to open your eyes. तो दो चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं. So I'll talk about first what is needed to be done. ये क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या करना चाहिए. And then we'll talk about the nature of our body. हमारे शरीर की प्रकृति के बारे में थोड़ा जानेंगे. Then the third step, I'll be a little more comprehensive about the therapy. मैं कुंभक थेरेपी के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बता के we'll do one कुंभक मेथड. एक कुंभक मेथड करेंगे. We'll do a little taster. So first let's understand what is the problem. Problem क्या है? ब्लड प्रेशर क्यों होता है? Who knows why blood pressure happens? Nobody knows. The medical fraternity doesn't know why blood pressure happens. किसी डॉक्टर को, किसी साइंटिस्ट को मालूम ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है. दूसरी चीज, एक और बात बता दूं, सेकेंड थिंग आई शुड टेल यू, दिस इज नॉट ब्लड प्रेशर. What you are measuring is not blood pressure. ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता है. Now this is not what I am saying. ये मैं नहीं बोल रहा. Now there are new researches which says it. नए रिसर्च हुए, वो बता रहे हैं कि ब्लड का कोई प्रेशर होता ही नहीं. Then what is it? फिर ये है क्या? So in कुंभक विज्ञाना we call it व्यान, व्यान पक्ष. हम कुंभक विज्ञान में व्यान पक्ष कहते हैं. किसी का व्यान पक्ष अगर कमजोर हो गया तो उसको बॉडी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ाता है. नाउ आई विल नॉट टॉक इन दोस टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूं. सो विल जस्ट अंडरस्टैंड इट इन द मोस्ट सिंपलिस्टिक मैनर. बहुत सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश कर. मुझे एक बात बताइए, आर यू डूइंग एनीथिंग इनसाइड योर बॉडी? आर यू रनिंग योर हार्ट, लिवर, किडनी, नर्वस सिस्टम? कुछ भी आप अंदर कर रहे हैं क्या? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. आप कुछ भी अंदर नहीं कर रहे. इस बात को आप समझ लीजिए. सो देयर आर बेसिकली टू एंटिटीज इन यू. आपके अंदर दो पक्ष हैं, दो हिस्से हैं आपके. वन यू कॉल एज आई, एक बोलते हैं मैं, एंड द सेकेंड इज योर बॉडी. और दूसरा कौन है? आपका शरीर. सो आपका शरीर में आप कुछ नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन योर बॉडी. सो इट इज एन ऑटोमेटेड मैकेनिज्म. ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है. अगर आप कुछ कर रहे होते तो आप अपना ब्लड प्रेशर ठीक कर लेते ना.
if you would be doing anything, you would have corrected your heart and blood pressure. सब कुछ ठीक कर लेते, तो आप तो नहीं कर रहे. You are not doing anything. Then what is that making this body function? कौन सी ऐसी चीज है जो उसको फंक्शन करवाती है? तो उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे. पहली बात समझिए, दिस इज एन ऑटोमेटिक मैकेनिज्म, ऑटोमेटेड मैकेनिज्म. Why would your body increase blood pressure? आपका शरीर ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाएगा? To protect itself, अपने को बचाने के लिए बढ़ाएगा. बॉडी नेवर किल्स इटसेल्फ. आप बेशक से यू कैन डू सुसाइड, आप आत्महत्या कर सकते हैं, ये शरीर नहीं करता. बॉडी नेवर डज हार्म टू इटसेल्फ. शरीर कभी भी अपने को नुकसान नहीं करता. दिस इज अ पार्ट ऑफ नेचर, प्रकृति का हिस्सा है. शरीर कभी भी अपने आप को नुकसान नहीं करता. सो व्हेन इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, जब ये इंक्रीज कर रहा है ब्लड प्रेशर, देन इट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ. अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है. किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है? व्हाट इज इट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम? किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है? So anything in your body happens with a little pressure. आपके शरीर में कोई भी काम है ना, जैसे हार्ट फंक्शन, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, न्यूरो फंक्शन, लंग फंक्शन, ये जितने भी अंदर के काम है ना, इन काम को होने के लिए, टू फंक्शन द बॉडी रिक्वायर्स अ सर्टेन प्रेशर. ये शरीर को जरूरत होता है कुछ प्रेशर का. विदाउट प्रेशर नथिंग कैन हैपन इनसाइड द बॉडी. नो ट्रांसपोर्ट, नो फंक्शनिंग. अंदर से कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा. विदाउट प्रेशर नथिंग कैन हैपन इनसाइड द बॉडी. नाउ इफ यू हैव लॉस्ट समथिंग कॉल्ड एज क्रिएटिंग ऑप्टिमम प्रेशर, जब आप शरीर के साथ में, आपका शरीर किसी तरीके से कमजोर हो जाता है और प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाता जितना चाहिए इसको, व्हेन यू डोंट डू इट बाय व्हाटएवर मीन्स, द वे यू आर लिविंग, वो उस तरीके से अगर वो प्रेशर आप अंदर नहीं क्रिएट कर पाते, देन बॉडी रेजेस द ब्लड प्रेशर. तब ये शरीर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है. तब ये शरीर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है. बिकॉज विदाउट प्रेशर नथिंग कैन हैपन इनसाइड. कुछ भी नहीं होगा. सो दिस इज अ प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. दिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी. So why it is trying to protect itself? Because you are not able to do something which it needs. आप वो नहीं कर पा रहे जो कि इसको चाहिए. So we call it, there is some aspect in you which increases pressure. This is Vyana. It has gone weak. वो weak हो गया आपका अंदर. Second thing is heart disease. दूसरा पक्ष है heart disease का. I'll give you an example. मैं आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं, so that you understand it. आप समझ में आए आपको. मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं. सपोज यू आर वाटरिंग सम प्लांट इन योर गार्डन. आप अपने बागीचे में कुछ पौधों को कुछ पौधों को पानी दे रहे हैं. Somebody saying challenging medical, no, medical science is only saying there is nothing called blood pressure. मैं क्यों बोल रहा हूं? हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं there is nothing called blood pressure. इन कुंभक विज्ञान it is only व्यान दोष. इसको व्यान दोष कहा जाता है. अब तो मेडिकल साइंस बोला, उसको मैं चैलेंज क्या करूंगा? They are all challenge people. They can't correct even a single disease. Why should I challenge medical science? वो खुद ही चैलेंज में है. So heart disease, आप पौधों को पानी दें. You are watering some plants in the garden. And the pipe is short. पाइप छोटा पड़ जाता. कहीं दूर पानी डालना है, कहीं दूर पानी ले जाना है आपको. क्या करेंगे? What will you do? आप पाइप के सिरे को दबाएंगे ना. You will press the mouth of pipe. ऐसा करता है ना, दबाते हैं आप, कम कर देते हैं. ल्यूमेन जो उसकी जगह है उसको कम कर देते हैं. And it just goes high. मतलब far off. वो पानी दूर तक चला जाता है. ऐसा ही होता है. When your heart is not able to create pressure properly, आपका हार्ट अगर प्रेशर नहीं बना पा रहा ब्लड का, तो वो ब्लॉक्स क्रिएट करता to increase the pressure.
अगेन हार्ट ब्लॉक्स आर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। हार्ट के ब्लॉक्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनते हैं। नाउ वंस अगेन एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, मोर ब्लॉकेजेस एंड मोर कोलैटरल्स द मोर हेल्दी हार्ट इज। नाउ दिस इज नॉट आई एम सेइंग, दिस इज मॉडर्न मेडिकल साइंस कह रहा है। जितने ब्लॉक्स और जितने कोलैटरल्स होंगे हार्ट में उतना हेल्दी होता है हार्ट। तो स्टेंट लगाने से, इफ यू पुट स्टेंट, योर हार्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ योर हार्ट गोज डाउन। आपका हार्ट का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। हाँ, so putting stent and doing angioplasty is unscientific. नहीं हुआ ऐसे? If you are reducing the strength of your heart, isn't it unscientific? The only thing is, if you feel a little pain, you don't want to bear it. आप उस पेन को सहना नहीं चाहते. If you bear it for a month or two, but your heart will be fine. Now, mitral valve prolapse, ऐसा किसी का कुछ अगर प्रॉब्लम है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी अगर किसी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तब भी क्या है, वाल्व से पीछे ब्लड वापस आ रहा है, रिवर्स फ्लो हो रहा है आपके वाल्व से। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज योर वाल्व इज नॉट एबल टू क्लोज प्रॉपरली। आपके वाल्व ठीक से बंद नहीं हो पा रहे, प्रेशर नहीं बन रहा, उतना प्रेशर नहीं बन रहा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, आपके हार्ट में सूजन आ जाती है, बिकॉज द टिश्यू इज नॉट एबल टू क्रिएट द ऑप्टिमम प्रेशर। तो मैंने जितनी भी बात की है इसमें एक चीज कॉमन है, वॉट एवर आई एम सेइंग, वन थिंग इज कॉमन, देयर इज सम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट यू हैव लॉस्ट। आपने कोई ना कोई स्ट्रेंथ अंदर से कमजोर हो गया, इतना मान के चलिए सिंपल टर्म्स में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, और इसका थेरेपी आपको समझ में आएगा। So there is, your heart has become weak. Heart disease means heart has become weak. Blood pressure means the pressure mechanism has become weak. दो बात पकड़िए, फिर हम थेरेपी के बारे में बात करते हैं। Catch these two things. Be a simple minded, है ना? थोड़ा सिंपल माइंड के साथ में सोचेंगे, so you will find a solution. So your heart has become weak and your pressure creating mechanism has become weak. ये दो चीजें समझिए। अब क्या है, if your heart has become weak, what is the solution? अगर आपका हार्ट कमजोर हो गया तो क्या सोल्यूशन है? Let's catch this word and go forward. इसको पकड़ के चलते हैं, सोल्यूशन मिल जाएगा। If your heart has become weak, कोई चीज अंदर आपके कमजोर हो गई है, what is the solution? Think from a child's perspective. एक छोटे बच्चे के दिमाग से सोचें। कोई चीज कमजोर हो गई है, something has become weak, what is the solution? Strengthen it, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। Is there any other solution? कोई और दूसरा सोल्यूशन है? कोई और दूसरा सोल्यूशन नहीं है। Strengthen it, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, कोई और दूसरा सोल्यूशन नहीं है। So by taking in your medicine, are you strengthening your heart? ये तो सबको सोचना पड़ेगा। By taking a medicine, दवाई लेने से आप हार्ट को मजबूत कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना, तो आप तो कोई सोल्यूशन ढूंढ नहीं रहे। You are just trying to reduce your blood pressure, create a little comfortable situation, but you are not curing yourself. आप अपने आप को क्योर तो कर ही नहीं रहे। So first thing, get it very clear. By taking medicine, you are not curing yourself. ये बात समझ लीजिए, है ना? Anybody can understand it. You are all intelligent people, and I'll prove it that you are more intelligent than you think. आज मैं आपको प्रूव करने वाला हूं कि आप ज्यादा समझदार हैं, जितना सोचते हैं उससे ज्यादा समझदार हैं। So you are not treating your blood pressure or heart disease. पहली बात, ये बात क्लियर कर लो। By taking medicine, any medicine, कोई दवाई लो, कैसी भी दवाई लो, केमिकल, नॉन केमिकल, whatever, by taking in medicine, you are not curing yourself. आप अपने आप को ठीक नहीं कर रहे। Now let's go towards how do we strengthen our heart. कैसे हम हार्ट को स्ट्रॉन्ग करें? क्या इसको समझना नहीं पड़ेगा? We need to understand it. इसको समझना पड़ेगा। But we don't control heart function. हम तो कुछ भी हार्ट फंक्शन नहीं कर रहे। Then how can we
स्ट्रेंथन हार्ट, हार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो विल कम टू दैट, वहीं पे आएंगे हम। सो लेट्स टॉक फ्रॉम आउटवर्ड इन। पहले हम समझते हैं व्हाट इज द स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म ऑफ दिस बॉडी। शरीर में स्ट्रेंथ क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, पहले समझे इसको, लेट्स अंडरस्टैंड इट। सो हाउ मेनी पीपल हैव देयर राइट हैंड स्ट्रॉन्ग? आप में से कितने लोगों का दायां हाथ स्ट्रॉन्ग है? कितने लोगों का? उठाइए, लिफ्ट योर राइट हैंड। हाँ, एंड हाउ मेनी पीपल हैव देयर लेफ्ट हैंड स्ट्रॉन्ग? बायां हाथ किन लोगों का स्ट्रॉन्ग है? बहुत लोगों ने तो वीडियो ही नहीं ऑन कर रखा। सो लेफ्ट हैंड किसका स्ट्रॉन्ग है? नाउ हु डिड इट? किसने किया ये? एक हाथ को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया ना दूसरे हाथ से, यू मेड वन हैंड मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर। हु डिड इट? किसने किया? यू ओनली डिड इट। व्हेन यू वर बोर्न, जब आप पैदा हुए थे, दिस वाज नॉट द केस, ऐसा तो कुछ भी नहीं था ना। यू मेड वन हैंड और वन लेग मोर स्ट्रॉन्ग देन द अदर। आपने बनाया। कैसे बनाया? शुड बी अंडरस्टैंड इट। ये शरीर किसी चीज को स्ट्रॉन्ग कैसे करता है, समझे इसको? वी विल डू एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। हाँ, बिना एक्सपेरिमेंट के कुछ नहीं होता। सो लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। So keep your left palm like this. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें and make a fist from the right hand. दाएं हाथ से मुट्ठी बांधेंगे and push your left palm as hard as possible. अपने बाएं हथेली को जोर से पुश करें, जोर से पुश करें, धकेलें, जितना जोर से धकेल सकते हैं धकेलें, जोर लगाएं। You are creating a strength. आप इस समय स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं। How are you creating the strength of pushing? ये धक्का देने का जो स्ट्रेंथ आप बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? यू आर पुशिंग, आप धक्का दे रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग स्ट्रेंथ। यहां पे स्ट्रेंथ आप लगा रहे हैं, वो पैदा कैसे करें? हाउ आर यू क्रिएटिंग द स्ट्रेंथ? सो लॉट ऑफ थिंग्स माइट बी कमिंग टू योर माइंड। बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही होंगी ना, मसल्स, बोन्स, दिस दैट। नहीं 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 नहीं, यू आर नॉट लुकिंग इन द राइट डायरेक्शन। एवरी वन ऑफ यू नोज, बट जस्ट नॉट लुकिंग इन द राइट डायरेक्शन। सब जानते हैं मगर सही दिशा में नहीं देख रहे। So let's do it again. Wherever I am indicating, look there. दोबारा करते हैं, जहां मैं बता रहा हूं वहां देखना है। जितना जोर से हो सके धक्का दें, पुश करें, पुश इट वेरी हार्ड। See, the more hard you want to push, the more you have to hold your breath. जितनी जोर से धकेलना चाहते हैं उतनी सांस रोकनी पड़ती है। You have to hold your breath to create the strength of push. धक्का देने की शक्ति जो पैदा कर रहे हैं वो सांस रोक के कर रहे हैं। बिना सांस रोके आप स्ट्रेंथ नहीं क्रिएट कर सकते। यू कांट क्रिएट एनी स्ट्रेंथ विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ। कभी रस्सा कस्सी खेलिए? हैव यू प्लेड टग ऑफ वॉर? किसी को खींचा है? हैव यू पुल्ड एनीबॉडी? किसी को खींचा है कभी? कैसे खींचते हैं? हाउ डू यू पुल? तो अपने उंगलियों को ऐसे फंसा लें, क्लैस्प योर फिंगर्स, उंगलियों को आपस में फंसा लें, फंसा ले उंगलियों को, एंड देन पुल, खींचिए, जोर से खींचिए, पुल इट हार्ड। यू होल्ड योर ब्रेथ टू पुल। सांस रोकते हैं ना, यू होल्ड योर ब्रेथ। सांस रोकते हैं तभी आप धक्का दे पाते हैं, सांस रोकते हैं तब आप खींच पाते हैं। पुशिंग, पुलिंग, बोथ यू कैन डू ओनली व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ। जब सांस रोकेंगे तभी कर पाएंगे। सो मॉर्निंग यू गेट अप, सुबह सुबह उठते हैं, अंगड़ाई लेते हैं ना, यान एंड टेंस योर बॉडी, शरीर को टाइट करते हैं। कैसे टाइट करते हैं? कैसे टाइट करते हैं? You hold your breath and tense your body. अब यहीं पे मैं ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा बता दूं। Should I tell you about blood pressure? If somebody is trying to hit you, कोई आपको मुक्का मारने की कोशिश कर रहा है, how do you protect yourself? कैसे बचाते हैं अपने आप को? By tensing your body. शरीर को टाइट कर लेते हैं ना। You hold your breath and tense your body. You actually increase your blood pressure. Not only blood pressure, all the tissue pressure. आप ब्लड प्रेशर अपना बढ़ा के बचाते हैं अपने आप को। यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। सो एक्चुअली ब्लड प्रेशर इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। नाउ इवन इफ यू हैव टू गेट अप फ्रॉम अ चेयर, चेयर से भी उठना है तो भी क्या करना पड़ता है? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? यू मेक अ साउंड। क्या किया आपने? आपने सांस रोक लिया, आपने सांस रोक लिया। सो वॉट एवर यू डू throughout the day, आप शरीर को कैसे भी हिलाएं, in whatever way you move your body, और
create effort. कोई भी जोर लगाते हैं ना शरीर से, if you make any effort through your body, walking, jogging, yoga, zumba, aerobics, climbing staircases, household work, शरीर से कोई भी जोर लगाते हैं तो आपको सांस रोकना पड़ता है. यू होल्ड योर ब्रेथ इन वेरिएबल प्रोपोर्शन, अलग अलग अनुपात में पीछे सांस रोकना पड़ता है. सो ब्रेथ होल्ड इज द एफर्ट क्रिएटिंग मैकेनिज्म. एफर्ट लगाने का मैकेनिज्म है ब्रेथ होल्ड. यहीं पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं. आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन. जस्ट रिमेंबर योर एंसेस्टर्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा, दादी, नाना, नानी को याद करें. ठीक है? Were they physically more strong? Are you physically more strong? शारीरिक रूप से वो ज्यादा मजबूत थे या आप ज्यादा मजबूत हो? आप नहीं हो, वो ज्यादा मजबूत थे. Because they were making lot of effort with their body. वो बहुत कुंभक करते थे. सांस को रोक के एफर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. So they were making lot of physical effort. So they were physically more strong. कुंभक कर रहे थे वो अनजाने में, तो वो फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग थे. नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वेबिनार का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वेबिनार एंड द पॉइंट ऑफ दिस वेबिनार. यू होल्ड योर ब्रेथ एंड डू नॉट मूव योर बॉडी. आप बॉडी मूव करने के लिए ब्रेथ होल्ड को मत इस्तेमाल करो. आप ब्रेथ होल्ड करो बट डू नॉट मूव योर बॉडी. शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाना. बिकम एब्सोल्युटली स्टिल. सांस रोक लीजिए और स्थिर हो जाए. क्या होगा? व्हाट विल हैपन? योर हार्ट रेट विल इंक्रीज, योर टेम्परेचर विल इंक्रीज, यू विल स्टार्ट स्वेटिंग. पसीना आने लग जाएगा थोड़ी देर में. यू विल स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम. योर मेटाबॉलिज्म विल इंक्रीज. आपका अंदर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा. हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ऑर्गन फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा. Why? Because you are not directing it outside. या तो आप ब्रेथ होल्ड को शरीर का एफर्ट लगाने के लिए इस्तेमाल करें. अगर वो नहीं कर रहे तो ये कहां जा रहा है, इसका डायरेक्शन? What is it increasing? The direction goes inside. अंदर चला जाता है. If you do not move your body, the direction of breath hold, which is a strength creating mechanism, शक्ति पैदा करने का तरीका है ना ब्रेथ होल्ड, ये अंदर की दिशा ले लेता है. इट गोज इनसाइड. ये अंदर चला जाता है. ये आप सब करके देख सकते. तो मेरा क्वेश्चन ये आपसे ये है, कैन यू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स हार्ट एंड मेक इट स्ट्रांग? कैन यू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स लिवर एंड मेक इट स्ट्रांग? कैन यू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स योर किडनी एंड मेक इट स्ट्रांग? कैन यू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स pressure making mechanism and make it strong? Can you direct it towards your valve and make it strong? Can you direct it towards your thyroid and make it strong? इसके अलावा कोई तरीका नहीं है. You just don't know how. अभी आपको सिर्फ ये नहीं मालूम कि कैसे करें. But this is the only method your body can do to strengthen anything which is inside. अंदर अगर किसी चीज को स्ट्रांग करना है आपको, तो आपको ये ब्रेथ होल्ड का डायरेक्शन उस दिशा में, उस ऑर्गन की तरफ ले जाना पड़ेगा, तो वो ऑर्गन स्ट्रांग होगा. जैसे बाहर कैसे किया आपने? यू वर्कड विथ वन हैंड, यू वर्कड विथ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड एंड इट बिकेम स्ट्रांग. अब मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में बता रहा हूं, उसको समझ जाइए, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. सो लिफ्ट योर स्ट्रांग हैंड. अपना दायां हाथ या बायां हाथ जो भी मजबूत है वो उठाइए. लिफ्ट योर स्ट्रांग हैंड अप. दायां हाथ, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, व्हिचएवर हैंड. टेंस इट टाइट. टाइट कीजिए उसको, जितना हो सके टाइट कीजिए. टेंस इट वेरी वेरी टाइट. यू होल्ड योर ब्रेथ एंड डायरेक्ट इट टुवर्ड्स दैट हैंड. द सेकंड हैंड इज लूज. दूसरा तो लूज है ना. आपने सांस रोका, उसे बाहर की तरफ में डायरेक्शन दिया ना. When you worked with that hand more, उस हाथ से काम ज्यादा किया. तो काम कैसे किया आपने? ब्रेथ होल्ड करके काम किया. But the direction went to that hand. उस हाथ की तरफ में दिशा चलेगा. So one more example. एक और एग्जांपल देखो. You know, people go to gym and build muscles. लोग जिम जाते हैं, मसल्स बिल्ड करते हैं, है ना? How do they build muscles? कैसे मसल्स बिल्ड करते हैं? They lift weight उठाते हैं. Suppose you start lifting weight from the right hand. दाएं हाथ से आपने वेट उठाना शुरू किया, तो आपका राइट हैंड स्ट्रांग होगा.
यस और नो? राइट हैंड के मसल्स बिल्ड हो जाएंगे ना। हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट लिफ्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सांस रोकनी पड़ेगी। द मोर वेट यू वांट टू लिफ्ट, द मोर यू विल हैव टू होल्ड योर ब्रेथ। एंड व्हाट इज द अदर थिंग दैट यू यूज? दूसरी चीज क्या इस्तेमाल करेंगे? मसल्स ऑफ दैट हैंड, राइट हैंड के मसल्स को इस्तेमाल करेंगे। सो द ब्रेथ होल्ड की डायरेक्शन कहां गई? वेयर डिड द डायरेक्शन ऑफ ब्रेथ होल्ड गो? टुवर्ड्स द मसल ऑफ द राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, व्हिचएवर, टू द मसल ऑफ द राइट हैंड। डायरेक्शन चला गया, ये स्ट्रांग हो गया। इफ यू डोंट गिव द डायरेक्शन आउटसाइड, अगर आप बाहर हरकत ना करें शरीर का, डोंट गिव द डायरेक्शन आउटसाइड, द डायरेक्शन विल गो इनसाइड। यू कैन डायरेक्ट इट टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर ऑर्गन, एक ऑर्गन की तरफ में डायरेक्शन दे सकते हैं उसको, एंड यू कैन मेक इट स्ट्रांग, उसको स्ट्रांग कर सकते हैं। वंस दैट ऑर्गन इज स्ट्रांग, द फंक्शन विल बी फाइन एंड यू कैन कम आउट ऑफ अ डिजीज, दैट डिजीज ऑफ दैट ऑर्गन। उसके ऑर्गन से रिलेटेड जो भी डिजीज है उससे आप निकल सकते हैं बाय मेकिंग दैट ऑर्गन स्ट्रांग। और कोई तरीका है नहीं। दवाई खा के आज तक किसी ने हार्ट को स्ट्रांग नहीं किया, लिवर को स्ट्रांग नहीं किया, किडनी को स्ट्रांग नहीं किया। बाय एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करके आप स्ट्रांग करते हैं क्या? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। देन स्पोर्ट्स पीपल आल्सो गेट इनटू ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज। हार्ट अटैक उनको भी होता है, स्पोर्ट्स के लोगों को। किडनी फेलियर, डायबिटीज, थायराइड इशू उनको भी होता है, स्पोर्ट्स के लोगों को भी होता है ना। पीपल हु प्ले लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, उनको भी प्रॉब्लम होती है ना अंदर की, बिकॉज दे आर डायरेक्टिंग द ब्रेथ होल्ड आउटसाइड। वो जब एफर्ट लगा रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो शरीर की तरफ में डायरेक्शन जा रहा है ना उनका ब्रेथ होल्ड का। सो देयर बॉडी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है, बट दे स्टिल कैन सफर फ्रॉम अ वीक ऑर्गन। इसीलिए स्पोर्ट्स के लोगों को भी हार्ट अटैक होता है ना। ब्रेन स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है, किडनी फेलियर्स होते हैं, लिवर इश्यूज एंड कैंसर एंड व्हाट नॉट। सो द ओनली मेथड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ योर ऑर्गन, अंदर अगर आपको किसी चीज को स्ट्रांग करना है ना, तो एक ही मेथड है उसके लिए, बाय होल्डिंग योर ब्रेथ एंड डायरेक्टिंग इट टुवर्ड्स दैट ऑर्गन। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। दिस इज कुंभक थेरेपी पार्ट 1। ये मैंने आपको कुंभक थेरेपी का पार्ट 1 बता दिया। एज सिंपल एज इट लुक्स, ये बिल्कुल ऐसा ही है, कुंभक थेरेपी का पार्ट 1। आप सोच रहे होंगे ब्रेथ होल्ड करने से नुकसान तो नहीं होता? डज ब्रेथ होल्ड डू एनी हार्म? सो टेल मी, कौन सा वो इंसान है आज तक दुनिया में, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, जिसने अपनी सांस रोक के अपने आप को मार लिया? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन was able to kill himself by holding his breath. हाँ, नाक में मुंह में बंद कर दो वाले का अलग बात है, बट सेल्फ होल्डिंग से आज तक कोई किसी को कोई नहीं मार पाया। सो इट कैन नॉट हार्म यू, बिकॉज मॉर्निंग टिल इवनिंग पूरा टाइम आप कुंभक कर रहे हैं, आपको मालूम भी नहीं है, यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ एंड मेकिंग एफर्ट। हार्ट डिजीज वाले सारे लोग क्या शरीर नहीं हिलाते? डू दे नॉट मूव देयर बॉडी? एवरीबडी मूव्स देयर बॉडी and they are doing kumbhak. The only thing is you need to direct it inside towards an organ. तो ये नुकसान नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि ये आपका ही मैकेनिज्म, आपके बॉडी का मैकेनिज्म, दिस इज योर बॉडीज ओन मैकेनिज्म। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ इट, दूसरा पार्ट पे आते हैं। सभी लोग वो चैट बॉक्स में आंसर डालेंगे, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पुट योर आंसर देयर। विच डॉक्टर, विच साइंटिस्ट डिजाइंड योर बॉडी? कौन से डॉक्टर ने और कौन से साइंटिस्ट ने आपके शरीर को डिजाइन किया था? कौन सा ब्रांड है आपका शरीर, बताइए। कोई ब्रांड नहीं, कोई फैक्ट्री में नहीं बने थे आप। ओके, सो गॉड, nobody, then how do you exist? God, environment, God. So most of the people are saying God. ज्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं गॉड ने बनाया। नहीं, आप बोलना क्या चाहते हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? आप ये बोलना चाहते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम किसने बनाया। अगर आप गॉड बोल रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए, रेज योर हैंड, किसने गॉड को घर में बैठा के चाय पिलाया? किसी को फोन नंबर मालूम है? नहीं मालूम है। सो यू वांट टू से आई डोंट नो, आप ये बोलना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम, पर बोलने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए यू आर पुटिंग द ओनस ऑन समवन। जिसको आप जानते नहीं उसके ऊपर डाल दिया, इल्जाम लगा दिया।
So नहीं 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 नहीं, ऐसी बात एक्चुअल में नहीं. नो, एवरी वन ऑफ यू नोज हु डिजाइन्ड योर बॉडी. आप में से हर एक को मालूम है कि आपके शरीर को किसने बनाया. मैं ये प्रूव करके जाऊंगा. आई विल प्रूव इट नाउ. यू आर मोर इंटेलिजेंट देन यू थिंक. आपको थोड़ा एजुकेशन ने बेवकूफ बना रखा है, अदरवाइज यू आर मच इंटेलिजेंट पीपल. थोड़ा एजुकेशन की वजह से ना डिस्टॉर्ट हो गए हैं, राइट? मगर आप बहुत समझदार लोग हैं, ये मैं प्रूव करके जाता हूं. सबको मालूम है किसने बनाया आपकी बॉडी को. सो इफ देयर इज एन अफ्रीकन इन दिस वेबिनार, एक अफ्रीकन ज्वाइन करता है इस वेबिनार को, द मोमेंट यू लुक एट दैट अफ्रीकन, जैसे ही देखते हैं क्या बोलते हैं? ओ अफ्रीकन. ऐसे ना देख के ही बोलते हैं, नो आई कार्ड नथिंग. द मोमेंट यू सी द बॉडी यू से ओ अफ्रीकन. अफ्रीकन है. चाइनीज, नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया. द मोमेंट यू लुक एट समबडी यू गेट एन आइडिया अबाउट वेयर द पर्सन बिलोंग्स टू. होता है कि नहीं? आप देखते ही बोल देते हैं, अच्छा आप वहां से हैं क्या? है कि नहीं? पंचतत्व, प्राण, ऊर्जा. नोबडी नोज दैट पंचतत्व जो आप बोल रहे हैं, ये आइडिया आपका कहीं पढ़ लिया है आपने. आई एम टेलिंग यू, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन व्हाट यू हैव रेड. जितना पढ़ा लिखा उससे ज्यादा समझदार हैं आप. उसको पकड़िए. सो द मोमेंट यू लुक एट अ बॉडी, शरीर को देखते ही आपको पता लग जाता है ना. अफ्रीकन, चाइनीज, सब जानते हैं आप. यू नो एवरीथिंग. सो जब आप किसी को देखते ही बता देते हैं अफ्रीकन, सो हु डिजाइन्ड हिज बॉडी? किसने डिजाइन किया उसके शरीर को? किसने डिजाइन किया? अफ्रीका. व्हाट इज अफ्रीका? इट्स एन एनवायरमेंट. एक वातावरण तो है. व्हाट इज चाइना? एक एनवायरमेंट, एक वातावरण तो है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक वातावरण, साउथ इंडिया एक वातावरण है. नॉर्थ इंडिया पहाड़ी इलाका, पहाड़ी हो क्या? देखते ही बोलते हैं. सो हु डिजाइन्स बॉडी? एन एनवायरमेंट. एक वातावरण डिजाइन करता है. ये सभी जानते हैं. लेट्स नॉट लुक एट अदर थिंग्स विच यू डोंट नो. ऐसी ऐसी बातें मत बोलिए जो आप नहीं जानते. वो बोलते हैं जो आप जानते हैं. ठीक है ना? पंचतत्व ये वो कहीं पढ़ के बोल रहे हैं, आपको मालूम नहीं. अगर आपको मालूम होता तो आप ठीक कर लेते अपने आप को. सबकॉन्शियस माइंड कहीं पढ़ के बोल रहे हैं. आप जो जानते हैं ना उस पर बात करते हैं. यू आर मोर इंटेलिजेंट देन दैट. मैं यही प्रूव कर रहा हूं आपको कि आप ज्यादा समझदार है. जितना पढ़ा लिखा है ना आपने, उससे ज्यादा समझदार है. सो एनवायरमेंट डिजाइन से बड़ी. एक एनवायरमेंट, एक वातावरण आपके शरीर को डिजाइन करता है ना? प्रकृति भी बोल सकते हैं उसको, एनवायरमेंट को हम नेचर भी बोल सकते हैं. बट एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट, एक वातावरण आपके शरीर को डिजाइन करता है. तो डिजाइन कैसा है आपका शरीर का, समझेंगे ना? लेट्स अंडरस्टैंड द डिजाइन, तो आप तभी ठीक कर पाएंगे इसको. सो यू आर डिजाइन फॉर नेचुरल फूड. प्राकृतिक भोजन के लिए आपका शरीर बना है. प्राकृतिक भोजन मतलब वॉट एवर ग्रोथ इन नेचर, प्रकृति में जो पैदा होता है. पर आप सुबह से लेकर शाम तक क्या भोजन कर रहे हैं? व्हाट आर यू ईटिंग? कुक्ड, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, पैकेज, ऑल्टर्ड फूड खा रहे हैं आप. जिसके लिए डिजाइंड है वो भोजन नहीं कर रहे. यू आर नॉट टेकिंग मील और फूड फॉर विच यू आर डिजाइंड. बदला हुआ भोजन ले रहे हैं. दूसरी चीज, सेकेंड थिंग, यू आर डिजाइन फॉर अ नेचुरल सराउंडिंग. आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए? प्राकृतिक होना चाहिए. इसके लिए डिजाइन है आपका शरीर. कैसे वातावरण में जी रहे हैं? पिछले 50 सालों में, इन द लास्ट 50 years, वी हैव चेंज द एनवायरमेंट बाय 80%. 80% वातावरण को बदल दिया हमने. 80% ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वेरी फेस ऑफ अर्थ. 80% जीव जंतु, पेड़ पौधे पृथ्वी से खत्म कर दिए हमने. सब कुछ पोल्यूशन हो गया ना. एवरीथिंग गॉट पोल्यूटेड. एयर पोल्यूशन, दिस पोल्यूशन, दैट पोल्यूशन. वेयर इज वाटर? पानी कहां है? वेयर आर द लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स? तालाब, सरोवर हमारे कहां है? जमीन के नीचे पानी कहां है? आपके पांव के नीचे पानी कहां गया? दूर चला गया ना आपसे. फ्रॉम 50 feet to 5,000 feet, 10,000 feet, दूर चला गया पानी आपसे. सो द एनवायरमेंट दैट यू आर लिविंग इज नॉट फॉर विच यू आर डिजाइंड. आपका तो डिजाइन हुआ नहीं ना इस एनवायरमेंट के लिए. बदला हुआ वातावरण है. ऑल्टर्ड एनवायरमेंट, ऑल्टर्ड फूड, ऑल्टर्ड एनवायरमेंट. थर्ड थिंग, आप अभी बहुत समझदार हैं. मुझे एक बात बताइए, टेल मी वन थिंग, आर यू डिजाइंड फॉर केमिकल मेडिसिन? क्या आपका शरीर केमिकल मेडिसिन के लिए डिजाइन था? नहीं हुआ था.
नहीं हुआ था. सो इफ यू हैव अ पेट्रोल व्हीकल एट होम, घर में एक पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल डालेंगे क्या उसमें? विल यू पुट डीजल और कैरोसिन इन इट? डीजल या कैरोसिन डालेंगे उस गाड़ी में, पेट्रोल की गाड़ी में? नहीं डालेंगे ना. कॉमन सेंस, कॉमन सेंस. सो व्हेन योर बॉडी वाज नॉट डिजाइन फॉर केमिकल मेडिसिन, अगर केमिकल मेडिसिन के लिए डिजाइन नहीं हुआ था, तो विल यू एवर बी एबल टू करेक्ट इट विद केमिकल मेडिसिन? क्या इसको कभी भी ठीक कर पाएंगे केमिकल मेडिसिन से? सो आंखें खोल के देखते हैं, मोर मेडिसिन मोर डिजीज, यस और नो? सारे डेटा उठा लो ना, गूगल तो आप फोन पे करते ही है ना. अब देखो ना गूगल करके, पिछले 50 सालों में कितनी बीमारियां बढ़ गई. हार्ट डिजीज इंक्रीजिंग, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? हार्ट डिजीज और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है लोगों में? बढ़ रहा है ना. डायबिटीज इंक्रीजिंग, कैंसर इंक्रीजिंग, हाइपोथायराइड इंक्रीजिंग, इनफर्टिलिटी इंक्रीजिंग. बढ़ी तो रहे, सारी बीमारियां बढ़ रही है. मोर मेडिसिन मोर डिजीज, जितनी दवाई उतनी ज्यादा बीमारी. आपको आंख तो खोलना पड़ेगा ना कभी ना कभी, आंखें तो खोलनी पड़ेंगी. सो एवरी मेडिसिन दैट यू टेक, you are blood pressure patient or a heart disease patient because you have been taking medicine. One of the reason is you have been taking medicine. बचपन से दवाई ले रहे हैं, इस वजह से आज आपको हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर हो गया. एक रीजन उसमें से ये है. नाउ लेट्स गो लिटिल फर्दर. थोड़ा सा और टेक्निकलिटी के साथ मैं बता रहा हूं, मैं डिटेल में बता रहा हूं. व्हाट इज कुंभक थेरेपी, ये है क्या, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. देखिए, आप डॉक्टर से जाके तो पूछते हो, उनको मालूम ही नहीं है ब्लड प्रेशर क्या है, पर उनसे नहीं पूछते हो क्यों हुआ, वो कुछ भी बोल देंगे, फिर आप मान लेते हो. मगर मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं सो दैट यू गेट इट वेरी क्लियर, समझ में आपको क्लियरली आना चाहिए. सो इफ यू आर नॉट डूइंग एनी फंक्शन इनसाइड योर बॉडी, अगर आप कोई भी कामकाज, कोई ऑर्गन फंक्शन अंदर नहीं कर रहे, तो हु इज डूइंग इट, कौन कर रहा है? सो देयर आर फोर्सेस, ऐसी शक्तियां हैं जिससे की वजह से ये काम होता है. देयर आर फोर्सेस बिकॉज ऑफ विच इट हैपेंस. एक एग्जांपल देता हूं, आई विल गिव यू वन एग्जांपल. आपको गुरुत्वाकर्षण, ये धरती खींचती है ना, ग्रेविटी पुल्स यू डाउन, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है ना आपको, है कि नहीं? व्हाई डू यू ग्रो टॉल? आप ऐसे लंबे क्यों उठ जाते हैं? आप ऐसे लंबे क्यों उठ जाते हैं? व्हाई ट्रीज ग्रो अप? पेड़ पौधे ऐसे लंबे क्यों हो जाते हैं उल्टे डायरेक्शन में? Why do birds fly? पक्षियां ऐसे क्यों अगेंस्ट ग्रेविटी उठ जाती है ना? So what is there in you through which you push yourself up? आपके अंदर कोई ना कोई फोर्स होगा ना which goes against gravity, जो इस ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है ना, ऊपर की ओर उठा रहा है आपको. Isn't it? This is called as उदान in कुंभक विज्ञान. कुंभक साइंसेस में इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard this word उड़ान, उड़ना? ऐसा शब्द सुना आपने, उड़ना, उड़ान? ये उदान से आया है, राइट? सो दिस इज अ अपवर्ड मूविंग फैक्टर, फोर्स. ये ऊपर आपको धक्का देने वाला फोर्स है. सपोज ये फोर्स आपके अंदर कमजोर हो गया, सपोज ये फोर्स, ये जो ऊपर उठाने वाली फोर्स है, ये कमजोर हो गई आपके अंदर. सो हाउ विल यू फील? कैसा फीलिंग होगा? हेवी फीलिंग होगा ना. हेवी इन द बॉडी, हेवी इन द माइंड. इसको क्या कहते हैं? आप लोगों ने सुना होगा, इसको क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? स्ट्रेस. STRESS, स्ट्रेस. ये वर्ड सुना है ना सभी ने? मैं आपको डिफाइन करके बता रहा हूं स्ट्रेस है क्या. स्ट्रेस से होता है ना ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस से होता है कि नहीं होता? ब्लड प्रेशर होता है. सो उदाहरण अगर कमजोर हो गया आपके अंदर, तो ब्लड प्रेशर आएगा ना, आएगा. सो कितने फोर्सेस हैं जो काम कर रहे हैं? हाउ मेनी फोर्सेस आर वर्किंग इनसाइड यू? 84 फोर्सेस, 84 फोर्स है. सो कौन सा फोर्स वीक हो गया आपके अंदर? विच फोर्स हैज बिकम वीक इन यू, बिकॉज ऑफ विच यू हैव गॉट इनटू हाइपरटेंशन, बिकॉज ऑफ विच यू हैव गॉट इनटू हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, बिकॉज ऑफ विच यू हैव गॉट इनटू हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड अदर डिजीज. वो कौन सा फोर्स कमजोर हो गया आपके अंदर जिसकी वजह से आप बीमार होना शुरू हुए? ये हम पता लगाते हैं, दिस वी डायग्नोस, इसका पता लगाते हैं.
by something called as Prana Shakti diagnosis, the world's only one of its kind of a diagnosis. पूरी दुनिया में अपने तरीके का इकलौता डायग्नोसिस है. We find out the weak force in you. आपके अंदर जो कमजोर हो गया फोर्स वो पता करता है. Then we design a कुंभक थेरेपी. एक कुंभक थेरेपी हर एक बंदे के लिए, हर एक इंसान के लिए जो प्रोग्राम ज्वाइन करता है उसके लिए डिजाइन किया जाता है. टू कम आउट ऑफ, टू स्ट्रेंथन दैट फोर्स, उस फोर्स को मजबूत करने के लिए. टू स्ट्रेंथन योर हार्ट, आपके हार्ट को मजबूत करने के लिए. टू स्ट्रेंथन द अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स दैट हैज कम इनटू योर बॉडी. जैसे किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज से कैसे बाहर आ सकते हैं, लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, एंड अदर थिंग्स. सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू? पहली चीज क्या करना होता है हमको? डायग्नोसिस, प्राण शक्ति डायग्नोसिस. उसके हिसाब से आपको कुंभक आपका डिजाइन किया जाता है टू स्ट्रेंथन दोज एस्पेक्ट्स व्हिच हैज बिकम वीक. अंदर जो जो चीज कमजोर हो गई है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए काम किया जाता है. सो दिस इज द ओनली थिंग, ये इकलौती ऐसी चीज है जिससे आप एक्चुअली अपने आप को स्ट्रांग करते हैं अंदर से. देयर इज नो अदर मेथड. एक्सरसाइज भी कर लेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे स्ट्रांग. वैसे तो एक्सरसाइज करना ही बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए. सो अच्छा खाना खा लोगे तो भी स्ट्रांग नहीं कर पाओगे. यू ईट गुड फूड, यू ईट एनी मेडिसिन, आप अंदर स्ट्रांग नहीं कर पाओगे हार्ट को. सो नाउ व्हाट एम आई सेइंग? अब मैं क्या बोल रहा हूं? लेट्स लीव व्हाट एवर एल्स यू आर डूइंग. छोड़ देते हैं कि आप जो कर रहे हैं, बिकॉज यू डोंट हैव मच चॉइस, है ना. ऑपरेशन कराना, प्रेशर आएगा तो एंजियोप्लास्टी करवाना पड़ेगा. डॉक्टर डराएगा, घर वाले डराएंगे तो आपको एंजियोप्लास्टी करवाना पड़ेगा, तो करवा लीजिए. डॉक्टर डराएंगे, सोसाइटी डराएगी, फैमिली डराएगी, तो आप दवाई खाना पड़ेगा आपको, तो खा लीजिए. लेकिन एक तो ऐसा काम कीजिए, जस्ट डू एटलीस्ट वन थिंग विच मेक्स यू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, जो अंदर से आपको मजबूत करके इस बीमारी से निकाले. एटलीस्ट डू दैट वन थिंग. व्हाटएवर एल्स यू आर डूइंग इज ओके, मगर उसकी वजह से जो कमजोरी आ रही है, एंजियोप्लास्टी की वजह से आपका हार्ट कमजोर हो जाता है. योर हार्ट बिकम्स वीक. इफ यू पुट एन आर्टिफिशियल वाल्व इनसाइड योर हार्ट, आर्टिफिशियल वाल्व अगर डालेंगे तो देयर इज अ चैलेंज ऑफ कीपिंग इट इनसाइड. आपका शरीर भागता है, थ्रो करता है, निकालता है उसको बाहर, और कमजोर हो जाता है आपका शरीर. विथ एनी काइंड ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन योर बॉडी बिकम्स वीक. तो एटलीस्ट डू समथिंग टू स्ट्रेंथन इट. उसका साइड इफेक्ट से निकलने के लिए, बचने के लिए, अपने को आगे चल के बचाने के लिए कुछ तो आपको करना पड़ेगा. आप बाकी जो कर रहे हैं वो करें, क्योंकि दैट इज, यू डोंट इवन अंडरस्टैंड. आपको नहीं मालूम, आपको समझ, आपको लगता होगा कि आप बहुत समझदार हो, तो ये आप जानते हो ऑपरेशन क्या होता है. नो, नोबडी नोज व्हाट इज एंजियोप्लास्टी, वो क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो अच्छा है या खराब है, नोबडी नोज. नाउडेज लॉट ऑफ रिसर्च इज कमिंग जो कहते हैं एंजियोप्लास्टी गलत है, करना ही नहीं चाहिए. सो आपको भी मालूम नहीं है, बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ समथिंग, यू हैव टू गो थ्रू सम काइंड ऑफ अ थेरेपी, सम काइंड ऑफ अ मेडिसिन आपको लेना पड़ता है. लेकिन कुछ तो ऐसा आपको करना चाहिए थ्रू विच यू कैन कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. यू कैन स्ट्रेंथन योरसेल्फ एटलीस्ट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द साइड इफेक्ट, फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन और मेडिकल इंटरवेंशन. उसके एडवर्स इफेक्ट से भी तो अपने को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, so that you can ensure that your life ahead is good, is healthy. वो जरूर आप कीजिए. So we'll do one कुंभक मेथड. एक कुंभक मेथड करेंगे. We'll do a little कुंभक मेथड. एक छोटा सा कुंभक मेथड करेंगे. This is one of the variation of something called as रुद्र व्यान कुंभक. ये रुद्र व्यान. अब पर एक और चीज मैं बता दूं, कुंभक इज नॉट योगा, इट इज नॉट प्राणायाम, राइट. ये प्राणायाम योगा वाला कुंभक नहीं है. दिस इज डेली कुंभक दैट यू आर डूइंग, है ना. आप योगा के लिए भी कुंभक को इस्तेमाल कर सकते हैं टू रीच टू अ स्टेट ऑफ मुक्ति, मोक्ष, सेल्फ एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य. ऐसा एक ही, ये कई सारे वर्ड हैं जो कि एक स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, योगा स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं. दीज डिस्क्राइब योगा स्टेट, है ना. योगा की फैक्ट्री का ये प्रोडक्ट है. योगा की फैक्ट्री का प्रोडक्ट क्या है? समाधि,
सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, निर्वाणा, कैवल्य, वो योगा की फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। कोई भी योगा की किताब उठा के देख लो, सैकड़ों किताबें, 20 योगोपनिषद, षड्दर्शन समुच्चय, पतंजलि योग सूत्र, गेरन संहिता, एंड देयर आर मेनी मेनी मेनी। कोई भी योगा की किताब उठा के देख लो, योगा की फैक्ट्री का एंड रिजल्ट क्या है? समाधि, मुक्ति, मोक्ष। वो हम नहीं कर रहे आपके लिए। पहली बात, हम आपको लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ से हटाने की कोशिश नहीं कर रहे, मुक्ति देने की कोशिश नहीं कर रहे। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर यू। सो व्हाट वी आर डूइंग एज अ कुंभक थेरेपी इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू योगा। योगा आपको मुक्त करेगा, हम आपको लाइफ की तरफ में धकेलेंगे। सो कंप्लीटली ऑपोजिट टू योगा, इसीलिए दिस इज नॉट योगा। पहली बात ये क्लियर समझ जाइए। नाउ वट एवर मेथड आई एम टेलिंग यू इज नॉट थेरेपी। जो अभी मेथड में सिखाने वाला हूं थेरेपी नहीं है। क्यों? फॉर थेरेपी वी नीड टू डायग्नोस यू। आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा ना थेरेपी के लिए। डायग्नोसिस तो किया नहीं ना आपका। सो आई एम गिविंग यू अ जेनेरिक मेथड, एक ऐसा सिंपल सा मेथड विच विल हेल्प। ये आपको मदद करेगा। किस चीज में मदद करेगा? बहुत सारी चीजों में मदद करेगा। इट विल हेल्प यू टू बी काम। ये आपको शांत रहने में मदद करेगा। इट विल हेल्प इन द प्रॉब्लम्स ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम्स। किसी को जॉइंट प्रॉब्लम है ना, लोअर बैक पेन, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, लेग्स में, पांव में अगर दर्द रहता है, नी पेन, ये है ना, इसमें आपको ये मदद करेगा। इट विल हेल्प यू इन दैट। ठीक है? और क्या क्या करेगा? somebody is not able to sleep properly, नींद नहीं आती है ठीक से, तो ये नींद लाने में भी मदद करेगा। इट विल टेक यू आउट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस रिलीफ करने में भी मदद करता है। मोरओवर इट विल गिव यू समथिंग कॉल्ड एज बल। बल एक शब्द है आयुर्वेद में। सो वी ऑलवेज कंसिडर आयुर्वेद एज अ पार्ट ऑफ कुंभक। कुंभक का हिस्सा है आयुर्वेद। सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड बल। बल का मतलब होता है ऑर्गन फंक्शनिंग के लिए यू नीड अ सर्टेन स्ट्रेंथ। आपका हार्ट फंक्शन करे, आपका अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो, प्रेशर मेंटेन रहे, इसके लिए आपको एक एफर्ट चाहिए होता है, उसे हम बल कहते हैं। सो बल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कुंभक। बल कुंभक का ही पार्ट है। तो वो बल अगर कमजोर हो गया, कौन सा बल कमजोर हो गया? दक्षिणाग्नि। अगर आपके अंदर दक्षिणाग्नि कमजोर हो गई तो आपको हार्ट डिजीज होगा। तो हम क्या करेंगे? दक्षिणाग्नि बढ़ा देंगे, तो हार्ट डिजीज से आप निकल जाओगे। इफ यू हैव व्यान डिस्टर्बेंस, आपका व्यान का डिस्टर्बेंस है तो ब्लड प्रेशर होगा, तो हम व्यान को स्ट्रांग कर देंगे तो ब्लड प्रेशर से निकल जाओगे। तो एक मेथड कर रहे हैं हम, दिस इज अ वेरिएशन ऑफ रुद्र व्यान। इसका नाम है रुद्र व्यान कुंभक। मैं आपको पहले मेथड बताऊंगा, देन यू विल डू विथ मी, मेरे साथ में फिर आप करें। थर्ड टाइम यू कैन डू ऑन योर ओन, आप अपने आप करके देखें। ठीक है? अब कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आप बड़े ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। सो उबासी आती है ना, यॉर्निंग होता है आपको, उबासी आती है ना, उबासी आती है जब, तो वैसे ही आपको 3 बार सांस खींचनी है। पूरा खींचना है पहली बार। इनहेल फुल फ्रॉम द माउथ, मुंह से खींचना है। यॉर्निंग में तो मुंह से लेते हैं ना, तो यॉर्न फर्स्ट टाइम फुल, देन सेकंड टाइम पुल अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और खींचे, थर्ड टाइम अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और खींचे, विदाउट एक्सेलेशन, सांस नहीं छोड़ना। लेना है, लेना है, लेना है। फिर क्या करना है? फिर ऐसे मुट्ठी बांधना है, वैसे मुट्ठी बांध के रखना है। पहले सुनेंगे, अभी करेंगे नहीं, अभी करेंगे नहीं। मुट्ठी बांध के रखना है एंड टेंस योर होल बॉडी माइल्डली। अपने पूरे शरीर को हल्के से टाइट करें। ऐसे समझें आप जमीन की तरफ अपने आप को धक्का दे रहे हैं, अपने शरीर को टाइट करके जमीन की तरफ में धक्का दे रहे हैं बॉडी को। यू आर पुशिंग योर सेल्फ टुवर्ड्स द ग्राउंड। आप अपने को ग्राउंड की तरफ में पुश कर रहे हैं। ठीक है ना? जमीन पे ऐसे धंसने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू पुश योर सेल्फ इन टू ग्राउंड। आप अपने आप को जमीन के अंदर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करेंगे। शरीर को थोड़ा टाइट कर लेना, थोड़ा टाइट करना है शरीर को, है ना, मुट्ठी बांध लेना एंड जस्ट टेंस योर होल बॉडी। पूरे शरीर को हल्का सा टाइट करके नीचे की ओर धसाने की कोशिश करें, नीचे की ओर पुश करने की कोशिश करें। होल्ड इट फॉर अ काउंट ऑफ 8, 8 गिनती तक रोकेंगे। ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद एक्सहेल करना, सांस छोड़ना है, मगर बिना आवाज किए छोड़ना। आवाज नहीं आनी चाहिए एक्सहेलेशन की। इतना धीरे छोड़ो, जितना धीरे छोड़ सकते हो उतना धीरे छोड़ो, है ना। 8 गिनती तक सांस को रोक के नीचे धकेलेंगे
पुश योरसेल्फ डाउन एंड देन एक्सेल। छोड़ना कैसे है? विदाउट साउंड, आवाज नहीं आनी चाहिए, एज स्लो एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक है, करते हैं, लेट्स डू इट। आराम से बैठ जाइए, आपकी रीढ़ की हड्डी टेक नहीं लगाना आपको, डोंट सपोर्ट योर स्पाइन, टेक नहीं लगाना वाइल डूइंग कुंभक। इन बिटवीन 2 राउंड्स यू कैन रिलैक्स, आप टेक लगा सकते हैं, मगर कुंभक करते वक्त में स्पाइन में टेक नहीं लगाना, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ ट्रिगर इनसाइड, अपने अंदर एक ट्रिगर डाल रहे हैं, वो सही जगह पे जाना चाहिए। तो अगर टेक लगाएंगे तो वहीं इकट्ठा हो जाएगा, तो स्पाइन को टेक नहीं लगाएंगे, राइट? लेट्स डू इट, साथ में करते हैं। नो बैक रेस्ट, मुट्ठी बांधे, पांव पे रखें, कीप इट ऑन योर नीज, पांव पे रखें मुट्ठी बांध के, है ना? मुंह खोलना है, पूरा पूरा हवा खींचिए, पूरी हवा खींचिए, ना पुल अ लिटिल मोर, थोड़ा और खींचिए, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम, थोड़ा और खींचिए एंड होल्ड, रोक लें, पूरे शरीर को टाइट कर लें, नीचे की ओर धक्का दें, पुश योरसेल्फ डाउन, नीचे की ओर धक्का दें, जमीन में धक्का दें। 8 7 6 5 4 3 2 1। नाउ एक्सेल वेरी वेरी स्लोली, नाक से सांस छोड़ना, नाक से सांस छोड़ना, धीरे धीरे बिना आवाज किए, जितना धीरे हो सके उतना धीरे। एक्सेल एज स्लोली एज पॉसिबल, शरीर को टाइट रखते हुए ही करेंगे। एक्सेल, एक्सेल एज स्लोली एज पॉसिबल एंड देन रिलैक्स। उसके बाद शरीर को ढीला करेंगे। फिर से बता रहा हूं, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, दिस वीडियो विल आल्सो बी शेयर्ड इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ये वीडियो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा, तो दोबारा आप देख सकते हैं। यस यस इट इज, देयर वाज साउंड, कोई बात नहीं, यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, आई विल रिपीट द इंस्ट्रक्शन, एक बार मैं इंस्ट्रक्शन रिपीट कर रहा हूं। तो दिस इज अ वेरिएशन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज रुद्र व्यान कुंभक। कुंभक लाखों तरीके के होते हैं, देयर आर लैक्स ऑफ कुंभक। We are in the process of reviving this whole knowledge base, ये पूरा का पूरा रिवाइव कर रहे हैं हम लोग। सो क्या करना है, मुंह से खोल के, मुंह को खोल के जैसे उबासी लेते हैं, द वे यू यॉन, आप सांस खींचते हैं ना, उस तरीके से आपको ज्यादा खींचना है, पूरा खींच लेना पहली बार में। फर्स्ट टाइम यू पुल मैक्सिमम, सेकेंड टाइम अगेन पुल अ लिटिल, उसके बाद थोड़ा रोक के, पहली बार खींचेंगे सांस, थोड़ा रोकेंगे, सेकेंड टाइम खींचेंगे, थोड़ा रोकेंगे, थर्ड टाइम खींचेंगे, होल्ड अ लिटिल पुल, होल्ड अ लिटिल पुल, 3 टाइम्स पुल एयर, हवा 3 बार खींचना, देन क्लोज योर माउथ, मुंह बंद कर लेंगे। ये मुट्ठी बांध के रखा है ना पांव पे, इससे अपने आप को नीचे धकेलेंगे, एज इफ यू आर पुशिंग योरसेल्फ डाउन, जमीन में धंसने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? ऐसे नीचे पुश करके 8 काउंट्स तक रुकना है, होल्ड फॉर 8 काउंट्स, नीचे के पुश करना एंड देन होल्ड, बिकम स्टैचू, स्टैचू हो जाए, 8 गिनती तक रोकेंगे, देन स्टार्ट एक्सेलिंग, बॉडी को टाइट ही रखना, टेंस योर बॉडी, स्टार्ट एक्सेलिंग, एक्सेल करना शुरू करेंगे, बट साउंड नहीं आना चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए, और जितना स्लो हो सके उतना स्लो एक्सेल करें, जितना हो सके उतना स्लो एक्सेल करें, एज स्लो एज पॉसिबल। देन आफ्टर एक्सेलेशन, सांस छोड़ने के बाद में, देन रिलैक्स योर बॉडी, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। वेन एवर यू डू 2 राउंड, जब भी 2 राउंड कर रहे हैं, ऑलवेज रिलैक्स, गिव प्रॉपर रेस्ट इन बिटवीन, सांसों को ना सामान्य करना पड़ता है, गेट योर ब्रेथ टू नॉर्मल, कैच योर ब्रेथ एंड देन ओनली अटेम्प्ट द नेक्स्ट राउंड। जब सांस नॉर्मल आ जाए तभी अगला राउंड अटेम्प्ट करेंगे। एक बार करें, लेट्स डू इट वंस मोर, एक बार और करते हैं, मुट्ठी बांध लो, है ना, पांव पे रखो, मुंह खोल के सांस खींचो, थोड़ा सा रोको और खींचो, पुल लिटिल मोर, थोड़ा सा रोकना है एंड पुल मैक्सिमम, तीसरी बार पूरा खींच लें, होल्ड, नीचे धसा, नीचे टाइट करें, पूरी बॉडी को टाइट करके नीचे धकेलें, पुश योरसेल्फ डाउन, 8 7 6 5 4 3 2 1। नाक से सांस छोड़ना, मुंह बंद कर लीजिए, नाक से सांस छोड़ना है, क्लोज योर माउथ, एक्सेल एज स्लोली एज पॉसिबल, जितना धीरे हो सके उतना धीरे सांस छोड़ो, शरीर को टाइट रखना, कीप द बॉडी टाइट एंड एक्सेल एज स्लोली एज पॉसिबल, एज स्लोली एज पॉसिबल, जितना धीरे हो सके उतना धीरे सांस छोड़ें, विदाउट साउंड, एज लॉन्ग एज स्लो एज पॉसिबल, जितना धीरे हो सके सांस छोड़ें एंड देन रिलैक्स। उसके बाद पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे,
तो ऑलवेज गिव अ लिटिल रेस्ट इन बिटवीन 2 राउंड, 2 राउंड के बीच में हमेशा रेस्ट देना है. whenever you are in a little light stomach, थोड़ा हल्का पेट में ही करना है ये. so when you have taken a full meal, एक पूरा भोजन किया, तो wait for 3 hours, 3 घंटा रुक जाइए, just wait for 3 hours, है ना, 3 घंटे बाद में करेंगे. when you are little light stomach, थोड़ा पेट हल्का हो तो उस समय करेंगे. and you can do a minimum of 8 rounds and a maximum of 16 rounds. जब ये करेंगे ना तो 8 राउंड मिनिमम करेंगे आप. मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? हाउ मच मैक्सिमम यू कैन डू? 16, नॉट मोर देन 16. 16 से ज्यादा ना करें, फिर बहुत तेजी से बदलाव होगा आपके अंदर. यू विल नॉट बी एबल टू बेयर इट. बहुत तेजी से आपके अंदर बदलाव होगा, वो आपको हजम नहीं होगा, झेल नहीं पाएंगे उसको. ठीक है ना? मिनिमम 8 राउंड्स, स्टार्ट विथ 8 राउंड्स एंड मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 16 राउंड्स. आराम से करें, जितना आराम से उसे करें. पहलवानी नहीं करना अपने साथ में. When you push yourself down, जब अपने आप को नीचे धकेलते हैं, उसके बाद बिल्कुल स्थिर हो जाइए. काउंट 8 गिनती करेंगे और जितना धीरे हो सके उतना धीरे एक्सेल करेंगे. सो रुद्र व्याना, a variation of रुद्र व्याना, मिनिमम 8 राउंड्स, मैक्सिमम 16 राउंड्स. ये आप करके देखेंगे, देयर विल बी लॉट ऑफ चेंज इन यू. आपको बहुत बदलाव महसूस हो, अभी ही बहुत बदलाव महसूस होगा. अगर सिर्फ ये 1-2 राउंड भी कर लीजिए ना, तो आपका डायस्टोलिक जो प्रेशर मेजर करते हैं ना, वो कम हो जाएगा. तो दिस वाज जस्ट अ लिटिल टेस्टर. थोड़ा सा टेस्ट दिया मैंने अपने आप को. मैंने आपको थोड़ा सा कुंभक का एक टेस्ट दिया. सो आई विल स्टॉप हियर. यहाँ पे मैं रुकूंगा, टीम विल टेक इट फॉरवर्ड. टीम आपको आगे ले जाएंगे. A little bit of an understanding on how the program is. program किस तरह से होता है उसकी जानकारी मैं दे देता हूँ. We are talking about a completely online program. The idea and objective is to complete reverse your conditions. Now what does reversal mean? Reversal means medicines should be completely gone, your symptoms should be eliminated, and also there should not be any prolonged dependency on Kumbhak therapy. Lifelong नहीं करनी है आपको Kumbhak therapy. During the process कोई dietary restrictions नहीं है. There is no exercise, there is no hand or leg movement, there is no medicine, not even Ayurveda, but आपको lifestyle guidance दी जाएगी, support भी किया जाएगा ताकि आपकी recovery बेहतर और जल्दी हो सके. Now we are talking about a 3-month long program format, but support काफी आगे तक भी रहता है, वो सारा मैं आप लोगों को समझाऊंगा. So there are 3 main important learning classes in the first phase, which is what we call learning phase. जब हम आपको सिखाते हैं what you need to do, all of this is based on Prana Shakti diagnosis. And there are 7 additional sessions within the structured 3-month phase. Pehli phase is about learning. So wherein the first class, these are weekly classes. The first class is about basic Kumbhak therapy. उसके बाद में आपकी डायग्नोसिस करी जाती है. द आइडिया एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट क्लास इज टू अक्लेमेटाइज, आदत डालना बॉडी को कुंभक थेरेपी की. देन सेकंड क्लास इज एडवांस कुंभक थेरेपी. अगेन द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर पर्सनलाइजेशन. इन द थर्ड क्लास आपकी डायग्नोसिस की बेसिस पे आपको इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस बताई जाती हैं. मीनवाइल थ्रू इन एंड थ्रू आउट आपको 4 टियर सपोर्ट मैकेनिज्म रहता है सपोर्ट करने के लिए, आप सही तरह से कर पाए वो सारी चीजों की असिस्टेंस के लिए. Now what is that 4-tier support mechanism? And this is nothing but आपके साथ में प्रोग्राम मेंटर्स एसोसिएटेड होते हैं आपको डायरेक्ट करने के लिए और गाइड करने के लिए. व्हाट्सएप और फोन कॉल के थ्रू सपोर्ट रहता है between 7 AM in the morning and 8 PM in the night. Plus you can also get into a video discussion based on mutual consent between yourself and your program mentor, just to ensure or question any of the queries that you may have. Sessions इस तरह से रहते हैं. While the session is going on in the learning classes, स्वामी जी classes आपको बता रहे होते हैं. Every क्रिया is repeated some 3 or 4 times, 3-4 बार repeat होती है. आपके वीडियो ऑन रहते हैं. There are separate set of Kumbhak therapists who observe you and correct you during the session through chat. Now you can do it in your own convenience. बस एक ही चीज जैसे सर ने बताया, आपको बैक रेस्ट नहीं लेना. You can be sitting on a chair or on a bed, doesn't really matter.
just to ensure that you are doing it correctly and you're doing it correctly every single time, we do give you a session recording to refer to. There is a login prepared जो access आपको हमेशा lifelong रहती है. तो WhatsApp पे messages नहीं, आपको एक login मिलता है बकायदा. और उसी तरह से आपको instructions follow करने के लिए we give you a PDF in which both Hindi and English instructions are there so that you can refer and follow. And plus, after the learning class, you do it for some 3 or 4 days. उसके बाद में there is a follow-up session जिसको join करके you can revise or review etc. or relearn if required your practices. Now, then after that, there is a second phase जो implementation की phase होती है for a 40-day period जब individual guidance के through, mentor support के through आपको एक discipline में लाने की कोशिश करी जाती है so that you not only learn it correctly but you also implement it correctly. Then after that there is a correction phase which is where we have 4 practice correction sessions from an objective of making corrections in any mistakes you are making, fine tuning if your body has evolved, and also to provide you knowledge as to how to understand your symptoms, how to take your tests or readings, and how to step by step come out of medicine. उसके बाद में आपका सपोर्ट का मैकेनिज्म रहता है, that is the fourth potential extended support phase for an undefined period. Undefined period के लिए बहुत ही कम ऐसे कोर्सेज होंगे पूरी दुनिया में, if at all any, जिसमें आपको तब तक सपोर्ट रहता है जब तक आपकी कंडीशन पूरी मीट ना हो जाए. वो क्या कंडीशंस मीट होनी है? 3 कंडीशंस, आपकी मेडिसिन, आपके सिम्टम्स और कुंभक थेरेपी पे लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंस, ये तीनों भी नहीं रहनी चाहिए. All you need to do to basically come out of your medicine is to learn the practices designed for your body as a 30-minute module. 20 minutes, 20 मिनट केवल सुबह के समय में और 10 मिनट शाम के समय में आपने करनी है. That's all. No precautions, no nothing. 78% of the people who have joined into different batches, more than 2,000 participants in various programs and batches, 25% medicinal dependency 3 महीने के अंदर खत्म होती है. For BP actually it is much higher. Additional 29% medicinal dependency is reduced by more than half within a 3-month phase, और बाकी 24% के symptoms बहुत reduce हुए हैं, but the doctors they are controlling their medication. There are several examples जिनकी recovery हुई है, BP और heart की situation थी. So some of these examples are shared with you. There is people who have, there are a lot of females who have hypothyroid issues and several other common issues, diabetes के, hormonal imbalances थी hypertension के साथ में, तो उनके भी हुए हैं. So several of them, male or female, completely out of medicine. So that is what we have discussed. The cost of the program is 8,000 rupees till tomorrow. Otherwise, the full cost of the program is 12,000 rupees. But for webinar attendees, it is going to get offered at 9,000 even after this discounted period. So I am launching a poll to you guys. आप लोगों को जैसा इंटरेस्ट हो इस प्रोग्राम के बारे में प्लीज मेंशन करिए so that we can reach out to you, or you can make the payments if you want to. Google Pay से लेकर बैंक और credit debit card, all of these possibilities are there. Those of you who are interested in the program, please make sure that you drop your, आप अपने phone numbers share करें group chat में. Please drop your phone numbers in the group chat if you have a query or if you have basically any interest in the program, so that we can reach out to you and we can guide you accordingly. The program is on a convenient Sunday. 5 PM का बैच है, 5 बजे का बैच है. 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं ये बैचेस, तो उस हिसाब से these are the learning classes. Now if you go to our website, you'd find a page like this and you can subscribe from here. तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, you get all the payment options, you can go ahead and make the payment. तो उस तरह से आप, meanwhile I am allowing you to unmute yourself. आप अपने सवाल प्लीज डायरेक्टली पूछ सकते हैं. मैं कुछ क्वेश्चंस चैट में से लेने की कोशिश करूंगा. जी श्वेता, if you wanted to ask a question, Shweta, you have to unmute yourself. That red button. Yeah. Hello. Good evening, everyone. I'm Shweta Jha. I'm from Delhi, and I wanna ask some of the questions, sir. Just like
Sometimes if I'm taking a pranic food, the food from the nature, I don't know why, but I feel so much of headache and acidity in my body. So what to do at this time? Sir, you are muted. As I, as I Sir, said, sir, am I audible? yes, you are audible. Yeah. The thing is, why you are not able to digest natural stuff. Not everything, but there are certain things which No, people face whenever problems. I do, no, As this is not all about the pranic food. Whenever I do, fasting, it happens. So why it happens? I'll get back to the root of everything. I So don't digestion know. is an effort. Digestion is an effort, isn't it? Digestion जो है एक effort है ना. It's an effort. Now this effort is done by the forces inside you, as well as there are certain efforts which is done by microorganism, which is there in your gut, or there is something called as gut microbiome. ये दो effort है. If your gut bacteria microbiome is not proper, you'll feel digestive issue, not only with raw things, but also with the cooked things. Yes. Now, if your effort making mechanism, there is something called as Jatharagni, or it comes under the umbrella of Garhyapatya Agni, which is responsible for the metabolic aspect of human body. If the Garhyapatya Agni is less, and Sir, one what of is the things, which Pathagni I am not getting? it's simple. That's why I'm not using certain terminology. No, sir, please, sir, you use that. I love to hear that. No, it's a little effort for metabolism. Right. Because of Garhyapatya Agni, the metabolic effort is there in the body. Otherwise, your body is not able to make effort of metabolism, and your metabolism goes down. Yes. So, if we increase the effort-making mechanism, which is which is oriented towards Garhyapatya Agni, people easily come out of digestive issues and issues related to metabolism. So, if you want to even digest natural stuff which you have not been taking for long, or human beings are not taking for long, then you must create a little effort which can actually do that for you. Fruits is something, see, vegetables and salad is something which people face difficulty. But for most of the fruits are 90% water. Yeah. And fruits are the easily digestible thing in nature. The most easy to digest in nature is fruits. So even if you are not able to digest fruit, that means what state we have come into. We are designed for fruit and we are not able to digest fruits. That means what state we have come into. So how to come out of this? You will have to increase the metabolic effort in your body, and that can happen through kumbhak. But sir, तो फिर instantaneously अगर then what to do instantaneously to come out of that headache and that acidity and burping? Yes, that is why I'm saying what forces have become weak in you, how we need to find out that, for which we do a diagnosis. This is what we do for all the programs. We do a diagnosis, find out which forces have gone weak inside you. Then we design a kumbhak to enhance that forces, and you see, because of those forces, whatever symptoms that you are getting in the body, like acidity, indigestion, burping, and heaviness, headache, and you'll come out of those things, because those are basically symptoms. Your body is saying something is weak inside you. Now what are you doing to address that? You are not doing anything to address that apart from taking in a headache pill. So your body is basically indicating something is weak inside you. Now strengthen that and you'll come out of this. There are Sir, many but could you please tell me the process by which we can, kumbhak you have told, like right now you have explained the Rudra Vyana kumbhak. Is it, it will work in that case or not? It will also work, but this is generic kumbhak. If we customize kumbhak, it works wonderfully well in a particular situation. That is why then it becomes therapy. At this point of time, this is not a therapy. This is kind of a generic. जैसे आजकल योगा प्राणायाम सिखा देते ना, सबको एक सिखा देते. लेकिन सर इंस्टेंटेनियसली किसी को हेडेक से निकलना होगा, कोई किसी को हेडेक हो गया, मेडिसिन नहीं खाना है, बर्पिंग हो रही, तो इंस्टेंटेनियसली व्हाट टू डू टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन? तो do kumbhak.
Which kind of, like Rudra Vyana or No, something this else? is not. If I start explaining Kumbhak for a particular condition, then I don't think this is a platform for that. इसमें लोग ब्लड प्रेशर और हार्ट से रिलेटेड इश्यूज पूछें तो ज्यादा अच्छा है. हार्ट और बीपी का है. आप अपना नंबर प्लीज शेयर कर दीजिए. आई विल रीच आउट टू यू सेपरेटली. ठीक है. स्पेसिफिकली हार्ट और बीपी के लिए है. So sir, there are a couple of questions from people. Atherosclerosis के लिए would it? Now what is atherosclerosis? जमा कोई ब्लॉक हो जाता है ना आर्टरी आपका, वो एथेरोस्क्लेरोसिस बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट आस्किंग दैट. मैं वो पूछ नहीं रहा. व्हाई एथेरोस्क्लेरोसिस हैपेंस, ये अपने डॉक्टर से पूछा करो ऐसी चीजें. बट वो भी आंसर ये नहीं बताएंगे जो मैं बताने वाला हूं. सो एथेरोस्क्लेरोसिस, देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट. इसके दो हिस्से हैं, आप समझो. पहला बात मैंने बोल दिया, आई हैव सेड इट इन वेबिनार. इफ योर हार्ट इज नॉट एबल टू मेक प्रॉपर प्रेशर, it will create a block to enhance pressure. हार्ट बिना प्रेशर के काम कैसे करेगा? अगर आप प्रेशर नहीं लगा पा रहे तो हार्ट तो ब्लॉक करेगा ना प्रेशर बढ़ाने के लिए. सो एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. वो बचाने के लिए आपको, और आप उसे हटा देते हो. फिर हार्ट बिकम्स वीक. एंजियोप्लास्टी से आपका हार्ट कमजोर हो जाता है. मोर ब्लॉकेजेस, मोर कोलैटरल्स, मोर हेल्दी द हार्ट इज. तो पहली बात, योर बॉडी, योर हार्ट इज ट्राइंग टू एनहांस द प्रेशर. Second thing, how it happens, there is our inner lining of your arteries. आर्टरी की inner lining है, उनमें अगर कमजोरी आती है, because of which the artery is not able to create pressure. प्रेशर क्रिएट करने के लिए ना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. अगर वो इनर लाइनिंग में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, यानी कि वो प्रेशर नहीं क्रिएट कर पा रहा उतना, देन इन द वीकर पॉइंट्स, जो कमजोर जगह है ना, वहां पे प्लाक जमा होता है. एंड इट क्रिएट्स, हेल्प्स द हार्ट इन क्रिएटिंग प्रेशर. सो बोथ, आपकी जो कमजोरी आ रही है ना हार्ट में, उसकी वजह से वो प्रेशर नहीं क्रिएट कर पा रहा, तो वो ब्लॉक करके प्रेशर क्रिएट कर देता है. सो इन दैट सेंस एंजियोप्लास्टी इज वेरी डेंजरस. एक तो प्रेशर नहीं बना रहा, आप ऊपर से और कम कर दो उसको. सो एंजियोप्लास्टी रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ हार्ट. उसके हार्ट का लाइफ रिड्यूस होता है. क्या सोल्यूशन होगा? क्या सोल्यूशन होगा? इफ यू स्ट्रेंथन द इनर लाइनिंग, अंदर की लाइनिंग को अगर आप स्ट्रेंथन कर दो तो प्रॉपर प्रेशर बनेगा. वो कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, वो क्यों कमजोर हुआ, वो पता करेंगे पहले. So we do a diagnosis. According to the diagnosis, if we give you कुंभक, your inner lining will strengthen up. Atherosclerosis होने के probability, chances बहुत कम हो जाएंगे. जरूरत नहीं पड़ेगी, बॉडी को उस तरीके से जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी. So atherosclerosis, जो हम कह रहे हैं फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाता है, क्रिएट कर रहा. What you call as fat or fatty tissues, जो आप कहते हैं, it is food for the body. वो भोजन है. कोलेस्ट्रॉल बॉडी का स्टोर्ड फूड है. जब कोरोना हुआ लास्ट ईयर, तो लोगों ने अनाज जमा करना शुरू कर दिया ना. People started storing grains. Why? Because they got into risk. रिस्क आ गया एक. तो बॉडी का भी जब रिस्क आता है, तो रिस्क से बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द रिस्क, इट क्रिएट्स फैटी लिवर, it creates cholesterol, triglyceride, it creates blockages. ये अपने आप को बचाने का तरीका है शरीर का. तो ये गलत नहीं है, लेकिन आप रिस्क को तो एड्रेस नहीं कर रहे. आप तो फैट कम कर देते हो, आप तो स्टैटिन खा लेते हो. तो बॉडी रिस्क में, उस रिस्क को कम तो करो, वो अपने आप ही ठीक कर लेगा. फैटी लिवर ठीक हो जाएगा. कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ रहा है, दैट मींस बॉडी इज गेटिंग इनटू रिस्क. बॉडी इज गेटिंग इनटू रिस्क. उस रिस्क को आप कम कर दो. So what about bypass? मैं common सब लोगों का मैं एक combine करना चाहता था question. So many of people, I don't know whether they are asking the right question or not, but लोगों का usually ये मानना होता है कि कुछ चीजें करने की ability कम हो गई है, जैसे हाँफ रहे हैं या चीजें करनी, जो उनके experiences हैं. All the names and diseases aside, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है ये तो कोई स्पेशलिस्ट बता रहा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये कराना होगा, ब्लॉकेजेस हैं, ये so all of that is fine, but there are a lot of symptoms that people feel, and then they get all of these names, different names.
which people don't understand, but they eventually start taking medicine. अभी क्योंकि they are going to a doctor who is highly celebrated, बहुत सारी डिग्रीज हैं, बहुत सारा कुछ है और बहुत सारा पैसा लग रहा है वो एडवाइस लेने के लिए, so they feel obligated to start doing that and shut their mind for everything else. तो वो किसी एक नई चीज को एक्सपेरिमेंट करना, हालांकि मन कह रहा है, दिमाग भी कह रहा है, लेकिन एक सोशल प्रेशर भी है और अपने आप पे एक फाइनेंशियल प्रेशर भी आ गया, सब कुछ आ गया और रिस्क लगती है बहुत बड़ी, जो जीवन की रिस्क है. तो ऐसे केस में कोई अगर डिसाइड करे भी तो कैसे करे? तो इसीलिए मैंने पहले कहा था आपको आंखें तो खोलनी पड़ेंगी. टेल मी वन पर्सन, एक तो एग्जांपल दीजिए मुझे जो दवाई खा के ब्लड प्रेशर जिसका बिल्कुल ठीक हो गया फिर दवाई खाना बंद कर. एक तो एग्जांपल दो, कम से कम एक प्रूफ तो लेके आओ. हार्ट एपिसोड्स आर, पीपल्स हार्ट आर बिकमिंग स्ट्रांग, ऐसा कुछ कोई तो एक एग्जांपल लेके आओ दुनिया में. द वे मॉडर्न ट्रीटमेंट इज डन, एलोपैथिक ट्रीटमेंट इज डन, एक प्रूफ तो लेके आओगे ना, तभी तो पास भी कैसे करें किसी थेरेपी को. इफ यू डोंट इवन हैव वन प्रूफ, एक प्रूफ भी नहीं है उसके बाद भी आप पास कर रहे हो, ये तो आपका ट्विस्टेड माइंड है. पर इससे तो आप अपने आप को ही निकालोगे. तभी तो मैंने कहा आप ज्यादा समझदार हो. ये मत समझो किसी के आगे डिग्री लगी हुई है तो समझदार है. उसने एक भी तो पेशेंट को ठीक नहीं किया. कोई एक पेशेंट को ठीक कर देता तो समझदार मानते हैं, पर दुनिया में किसी डॉक्टर ने एक पेशेंट को ठीक किया नहीं किया तो आप उनको समझदार मानो. ये तो आपको देखना पड़ेगा. द सेकेंड थिंग इज, इफ योर बॉडी वॉज डिजाइन फॉर अ जंगल एटमोस्फेयर, जंगल के लिए डिजाइन हुआ था आपका शरीर. सपोज यू आर एफर्ट मेकिंग, मुश्किल हो गया, आप थोड़ा चले और हांफने लग गए, बॉडी को यूज किया हांफने लग गए, नहीं कर पा रहे ठीक से, तो आप क्या करते उस टाइम पे? कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई हॉस्पिटल नहीं होता, नथिंग वुड बी देयर. क्या करते आप थोड़ा और जोर लगाते, क्योंकि अगर आप रेस्ट करते तो कोई जानवर खा जाता आपको. तो आप तो लेट नहीं सकते ना, कम एफर्ट नहीं लगा सकते, आपको तो एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा. यही तो शरीर ऐसे ही तो डिजाइन हुआ है. तो हार्ट डिजीज से निकलने के लिए फिर क्या करना होगा? बेड, बिस्तर पे बैठे रहो, नहीं तो और बीमारियां आ जाएंगी. सो यू हैव टू मेक एन एफर्ट. जो चीज एफर्ट नहीं कर पा रही ठीक से, उसको एफर्ट करवाना है ना आपने, तो आपको तो एफर्ट लगाना पड़ेगा. हाँ, वो एफर्ट विल बी कंट्रोल्ड एफर्ट, वो कंट्रोल्ड एफर्ट होगा. When you come to the class, we tell you how to make an effort. Control effort होगा, and you'll see these are very easy things to come out. Blood pressure से तो बहुत आसानी से निकल सकते हैं. आपको निकलना है कि नहीं निकलना, you decide. आपको अपना पैसा ज्यादा खर्च करके एंजियोप्लास्टी करानी, that is your choice. आपको अच्छी लाइफ जीनी की नहीं जीनी, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा. If you want to keep taking medicine, that is also your choice. कि आपको दवाई लेते रहना है, कॉम्प्लिकेशन होना है लाइफ में आगे चल के, तो लेते रहिए दवाई. कोई भी दवाई से कॉम्प्लिकेशन होता है. एडीआर, एनएनटी, आप गूगल पे सर्च करते हो ना, करो. एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एनएनटी, नंबर नीडेड फॉर ट्रीटमेंट, ये दो चीज सर्च करो. आप जो दवाई खा रहे हो उसका एडीआर, एनएनटी निकालो, आपको पता चल जाएगा क्या कर रहा है आपके साथ में. तो कम से कम आपको तो समझदार हैं आप लोग, तो उस तरफ में ध्यान देना पड़ेगा. Now, because there is a 5-star hospital, तो उसमें लोग सही सोचेंगे. ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ, कोई किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपने अच्छे कपड़े पहन लिए तो आप हेल्दी हो गए, तो हार्ट अटैक से बचने के लिए अच्छे कपड़े पहन लो. पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता. अलग अलग वर्ड्स बोल रहे हैं. एथेरोस्क्लेरोसिस, इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिख लिया, उसका ठीक तो किया नहीं किसी को. तो शब्द बोलने से कोई इंटेलिजेंट थोड़ी हो जाता. ये तो आपको, ये आपका चॉइस है. सी, आपने दवाई पे इन्वेस्टमेंट किया तभी हॉस्पिटल बने ना, दवाई बढ़ गई. यू इन्वेस्टेड इन मेडिसिन, दैट्स व्हाई मेडिसिन इंक्रीज. जिस पे इन्वेस्ट करेंगे वो बढ़ जाएगा. किसने इन्वेस्ट किया? आपने इन्वेस्ट किया. वो डॉक्टर भी क्या कर रहे हैं, आपको पैसा खर्च करने में मजा आता है मेडिसिन में, तो मेडिसिन बनवा रहे हैं और दे रहे हैं आपको मेडिसिन. ठीक करने का कोई प्रोविजन नहीं है. आपको भी मालूम है ठीक नहीं होता कोई, तो आप ठीक होने के लिए देख भी नहीं रहे ना. ये तो समझदारी नहीं हुई ना. ठीक हो सकते हैं पर आपको देखना पड़ेगा. आपको हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. आप दवाई पे करोगे दवाई बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल पे करोगे हॉस्पिटल बढ़ जाएगा, हेल्थ पे करोगे आपकी हेल्थ बढ़ जाएगी. तो आपको हेल्थ पे इन्वेस्ट करना है आज के टाइम पे. बट ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और ये हम सबको डिसाइड करना पड़ेगा. किसी को गलत सही नहीं, वो जो जानते हैं वो कर रहे हैं ना. What allopathic people are doing whatever they know, but it is not working. भाई खिचड़ी बना रहे हो, खिचड़ी नहीं बन रही तो कुछ और बनाओ ना.
It is not working. 70% of total disease are chronic in nature. एक भी ठीक नहीं होता एलोपैथी से। तो आपको कहीं तो और देखना पड़ेगा, और आपने तो आज इस वेबिनार में आके ये भी प्रूव किया ना कि आप कुछ और देख रहे हो। You are looking for a solution. So you will have to decide. You will have to open your eyes. Keep yourself open. ऑप्टिक्स पे ना जाएं, कोई क्या बोल रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, ये काम नहीं आती है। आइडियाज काम नहीं आते, केवल आइडिया दिमाग में बोल के मेंटली ठीक कर लो, माइंड से ठीक कर लो, अपने आप को कर लो ना, फिर नहीं होता ऐसा। सो यू हैव टू डू द राइट थिंग टू गेट रिजल्ट। So there is one more common query, जैसे विदिशा जी भी बोल रही हैं कि बीपी के लिए कोई कुंभक बताइए वगैरह वगैरह ऐसे। So मतलब when there is a name given to people, whatever that disease is, so they associate that their condition and the reason of them being into that BP situation is same. एक को बीपी है या 2000 या 2 करोड़ लोगों को बीपी है, सबको एक ही प्रॉब्लम है और सबका एक ही सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये कहां तक सही है, गलत है? ऐसा होता है क्या? आप ही देखिए ना कि आप दूसरे की तरह, किसी एक भी इंसान की आपकी तरह हो तो बता दो। नहीं, it doesn't happen like that. BP is not BP. Nobody knows why BP happens. आप पूरा मेडिकल जर्नल छान लो, पूरा डॉक्टर का मेडिकल जर्नल, साइंटिस्ट सब छान लो, किसी को भी नहीं मालूम कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है। अगर मालूम ही नहीं है तो सोल्यूशन कहां से आएगा? और वो केवल एक टैग कर रहे हैं सबको ब्लड प्रेशर। नहीं नहीं नहीं, देयर आर डिफरेंट रीजन फॉर ब्लड प्रेशर। वो पता लगाना पड़ेगा हमको, और वो पता लगाएंगे तभी सोल्यूशन। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन द डायग्नोसिस। वही हम डायग्नोसिस में कर रहे हैं। तो बिना डायग्नोसिस के हम कैसे पता लगाएं कि आपको, एंड लेट मी टेल यू, मैं आपको एक बात बताऊं सच्चाई, आप अगर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं लेते तो मोर देन 50% ऑफ द पीपल वुड हैव कम आउट ऑफ ब्लड प्रेशर, क्योंकि इट इज टेम्पररी इन नेचर। ब्लड प्रेशर आपकी लाइफ में टेम्परेरी पीरियड के लिए आता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए आता है, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन तब तक तो आपने दवाई शुरू कर दी, अब कभी ठीक नहीं होगा। अब गया चांस गया ठीक होने का। योर बॉडी इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। आप ब्लड प्रेशर में थोड़े टाइम से अपने आप को संभालो, अपने अंदर स्ट्रेंथ क्रिएट करो, आराम से ब्लड प्रेशर से निकल जाते। दवाई नहीं लेते तो। अब दवाई ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर से कभी नहीं निकल पाएंगे, बल्कि हार्ट डिजीज भी होगा। क्योंकि दवाई जो आप ले रहे हैं ना, लोसार्टन पोटेशियम, टेलमीसार्टन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं, एएस इनहिबिटर कहते हैं इनको, डाईयूरेटिक ले रहे हैं आप, आपके शरीर का ब्लड वॉल्यूम कम करके ब्लड प्रेशर कम दिखा रहा है। अरे ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है, इसमें कोई साइंस थोड़ी है। अगर गुब्बारे में ज्यादा पानी है, थोड़ा पानी निकाल दो, कम हो जाएगा। यही ब्लड प्रेशर कम करने के लिए कर रहे हैं। आपके मुंह में आप गोली खाते हो, थोड़ा पानी निकल जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड प्रेशर कम मेजर होता है। मगर ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी है, ये तो बच्चा भी कर लेगा इस तरीके से। बोलो कि गुब्बारे में पानी ज्यादा, क्या करना है, बोलेगा कम कर दो। दिस इज नॉट नो साइंस इन इट। इसके अंदर तो कोई साइंस ही नहीं है। बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो आप ले रहे हैं, वो जबरदस्ती करके आपके शरीर में ब्लड प्रेशर दिखाता नहीं है, बस उस समय मेजर करोगे दिखाएगा नहीं। लूज कर दिया, नशा दे दिया बॉडी को, तो ठीक हो जाएगी बॉडी क्या? तो आपको सोचना पड़ेगा ना, कर क्या रहे हैं? क्या आप ठीक कर रहे हैं अपने आप को? आप किसी भी दवाई से ठीक नहीं कर रहे अपने आप को। और ये मेरे बोलने पे मत आइए, ये आज का नया रिसर्च ढूंढिए, आपको वही मिल जाएगा। एक भी एलोपैथिक मेडिसिन ऐसी नहीं है जो इंसान को ठीक करती है, एक भी नहीं है। बल्कि नुकसान एक के बहुत सारे हैं। जो आप कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए खाते हैं ना, उससे डायबिटीज हो रहा है। 2500 में से 25 लोगों को जो डायबिटीज हो रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल कम करने की वजह से हो रहा है। तो डायबिटीज हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक क्या कर रहे हैं? एक भी बंदा बता दो जो डायबिटीज ठीक हो गई है जिसकी। आपको देखना पड़ेगा ना, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगे। यू मस्ट, एक बात समझिए, अगर ये शरीर आपको मिला है तो इसमें ही तरीका है इसको ठीक करने का भी। आपको उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। हेल्थ में इन्वेस्ट करो, हेल्थ में इन्वेस्ट करो, हेल्थ बढ़ जाएगा। बीमारी में इन्वेस्ट कर लो, बीमारी बढ़ रही है। कुछ लोगों ने एग्जाम्पल्स पूछे हैं, तो
एग्जांपल्स जिनके बीपी और हार्ट की सिचुएशन रिकवर हुई हो, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स। और भी बहुत हैं, ये तो थोड़े से बहुत पुराने चल रहे हैं, और भी बहुत है हमारे पास, तो और भी पेशेंट ये बहुत पेशेंट तो पुराना नहीं करते, कहते हैं हम उनको, ऐसे बहुत बंदे हैं जिनकी बीपी इज वेरी इजी टू कम आउट ऑफ। मैं आपको साफ बता देता हूँ, बहुत आसानी से ठीक हो सकता, हम सही नहीं कर रहे काम, बस इतनी सी बात है। नागेश्वर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, आप प्लीज पूछ लें। सो डायबिटीज और बीपी दोनों है नागेश्वर जी को, तो इज दिस द राइट प्रोग्राम ही इज आस्किंग, आई सपोज। देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले क्या हुआ आपको, सबसे पहले क्या हुआ, व्हाट इज द फर्स्ट सिचुएशन दैट यू हैव गॉट योरसेल्फ इनटू। अगर डायबिटीज पहले हुई है और बाद में बीपी हुआ, तो डायबिटीज के प्रोग्राम में अटेंड करें, वो ज्यादा सही रहेगा। इफ योर ब्लड प्रेशर हैपेंड फर्स्ट एंड देन यू गॉट इनटू डायबिटीज, देन दिस इज द प्रोग्राम। अगर पहले ब्लड प्रेशर या हार्ट इश्यू इस तरीके का कुछ हुआ है, तो दिस इज द प्रोग्राम। आपका डायबिटीज तो आपके कस्टमाइजेशन में विल टेक केयर ऑफ इट, द डायग्नोसिस विल टेक केयर ऑफ योर डायबिटीज एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर किसी को किडनी इश्यूज, लिवर इश्यूज, न्यूरो इश्यूज, कोई और भी इश्यूज हैं अपार्ट फ्रॉम ब्लड प्रेशर एंड हार्ट इश्यूज, देन इट विल बी टेकन केयर थ्रू द डायग्नोसिस एंड कस्टमाइजेशन। वो एक ही प्रोग्राम में वो बाकी चीज है, लेकिन पहले क्या हुआ वो आपको ध्यान देना है। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। राघव अंकित जी, योर हैंड इज रेज्ड, अगर आप वहां पर हैं तो प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। हेलो जी पूछें। हाँ जी बोलिए। हेलो सर जी, मैंने अपना 37 वाला बैच तो डायबिटीज के लिए कर लिया था, लेकिन अब जी स्वामी जी ने बताया कि पहले डायबिटीज के बीपी हो तो इस तरह का ना, मेरे को पहले तो 8 साल से बीपी था, डायबिटीज तो अभी आया है। आपका कस्टमाइजेशन हो गया? हाँ हो ना, कस्टमाइजेशन नहीं हुआ, 36 बैच में अभी ज्वाइन किया मैंने। आप रहने दीजिए, आप अपना नंबर डाल के ना अपना नाम आगे डाल दीजिएगा, बैच डाल दीजिएगा, आपका ब्लड प्रेशर के हिसाब से कस्टमाइज कर देंगे। ओके भार्गवी जी, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? भार्गवी गुरुजाला जी, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? आप लोगों में जिनको भी इंटरेस्ट आ रहा है वो आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, या अगर मन में कोई सवाल है, यू कैन शेयर योर फोन नंबर्स इन द ग्रुप चैट, और इंटरेस्ट इन द प्रोग्राम यू कैन शेयर योर नंबर्स इन द ग्रुप चैट एंड वी कैन रीच आउट, हम आप तक पहुंचेंगे। और आपके कोई अगर सवाल है तो उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपना फोन नंबर शेयर करिए। हेलो जी सर, अब्बू, मैं राघवानी अंकित बोल रहा हूँ। बोलिए सर। ये कुंभक थेरापी से डायबिटीज बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा? हाँ जी, डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा, पर आपको ये प्रोग्राम तो ब्लड प्रेशर के लिए है। अगर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है आपको, तो फिर आप इस प्रोग्राम में आ सकते हैं, वरना केवल डायबिटीज है तो दूसरा प्रोग्राम हमारा डायबिटीज वाला होता है। आप नंबर छोड़ दीजिए और पीछे उसके साथ में डायबिटीज लिख दीजिए, तो आपको हम वो प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। ओके। ऑलराइट, और किसी को अगर सवाल पूछना है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, और प्लीज मेक श्योर दैट यू रिस्पॉन्ड टू द पोल्स। पोल्स पे रिस्पॉन्स काफी कम लोगों का आया है, तो जिनका इंटरेस्ट है, या इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज मेक श्योर दैट यू रिस्पॉन्ड टू द पोल्स। आई थिंक मिसेस तजिंदर, आप शायद पहले कुछ कहना चाह रही थी, या कोई भी और। हम लोगों के सेशंस में और बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है सिवाय सवाल जवाब के। तो अगर आपके सवाल हों तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने सवाल कर लें, अदरवाइज देयर इज नॉट मच मोर रिमेनिंग अदर देन योर डिसीजन। आपके डिसीजन के सिवा बहुत कुछ बचा नहीं है, राइट? आपके सवाल हो तो अनम्यूट करके पूछ लें। अच्छा, हाँ कनक जी, आपका B37 में ही आप मेंशन कर दीजिएगा डायग्नोसिस के समय में,
तो वो एड्रेस उसी में ही हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। रवि जी आपका भी, आप उस समय जरूर मेंशन कर दीजिएगा जब डायग्नोसिस भर रहे हो ना अपना, तो आप वो मेंशन जरूर कर दीजिएगा। ओके, विद नो अदर क्वेश्चंस, आपको ये रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में मिलेगी। और यहाँ चैट में ही सर नंबर छोड़ना है कि व्हाट्सएप ग्रुप में करना है? व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपको B37 का है ना, उसमें बता दीजिएगा। और जब आप डायग्नोसिस का फॉर्म भरें तो उसमें तो लिखा हुआ है मैंने। हाँ, बस ठीक है, होगा। ओके सर, थैंक यू। तो ऑलराइट, मैं ये देख रहा हूँ कि लोग जो पोल पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसमें से ऐसा लगता है कि आपके कुछ सवाल हैं लेकिन आप पूछ नहीं रहे हैं, तो इसका कारण तो मैं नहीं जानता। अगर इफ यू फीलिंग शाई टू आस्क देन यू कैन मे बी टाइप इन। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शायद फेसबुक में भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया था, फेसबुक में अगर कुछ सवाल हो तो बाकी आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एंड विल रैप अप द सेशन वेरी सून। हम सेशन बंद कर रहे हैं। तो स्वामी जी से बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कोशिश करें कि इस समय पूछ लें आप अपने सवाल। सर अपना डायबिटीज और बीपी के सिवा कौन कौन सा प्रोग्राम होता है? डायबिटीज, बीपी, हाइपोथायराइड, कैंसर एंड इनफर्टिलिटी। 4 दिन बैठ कर 4 दिन ओके बैठ। सर। अभी ये कर रहे हैं हम, और भी इसमें प्रोग्राम्स आगे चल के हम डालेंगे। ओके सर। Sir, Facebook पे there was a question asked by Miss Sangeeta, can nasal polyps be cured? So nasal polyps, why the polyps are happening? ये क्यों हो रहा है किसी इंसान के अंदर, ये हमको पहले देखना पड़ेगा। Of course, anything that this body is doing to itself, it can be cured. उसको क्योर किया जा सकता है। For some situations, we need to take some external support also. कुछ कंडीशन में हमें कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ सकती है, बट एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी क्योर्ड बाय दिस सिस्टम इटसेल्फ, क्योंकि इसी सिस्टम ने जनरेट किया तो उसको ठीक कर सकता है। सिर्फ क्वेश्चन क्या है, क्यों किया वो पता लगा लेंगे, एंड वी वर्क टुवर्ड्स इट। टाइम टेकन टू कम आउट ऑफ अ सिचुएशन मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक शरीर के हिसाब से कितना समय लेगा उसको वापस आने में, ये वेरी करता है। कुछ लोग कुछ हफ्ते के अंदर ही इनको रिजल्ट मिल जाता है, दे कम आउट ऑफ देयर ब्लड प्रेशर, दे लीव देयर मेडिसिन, ऐसा भी होता है विद इन फ्यू वीक्स। कुछ लोगों को 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, कुछ लोगों को 6 महीने लगते हैं, और कई बार ये साल 1.5 साल तक भी ले लेता है। बट इज देयर एनी अदर ऑप्शन? अगर साल 1.5 साल के अंदर भी यू कम आउट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, यू ड्रॉप योर मेडिसिन, बिकम मोर हेल्दी, आपकी आगे की लाइफ अच्छी हो जाए, इज इट अ बैड डील? कोई और तो तरीका है नहीं, तरीका तो यही है। So time taken by each and every system can vary, but at least पहला कदम तो आपको रखना ही पड़ेगा ना। अगर 100 किलोमीटर भी चलना है तो you will have to start somewhere, and you don't even know next month क्या होने वाला है। आपको मालूम है आप में से कितने लोगों को हार्ट अटैक नहीं होने वाला अगले महीने, और सम ऑर्गन डैमेज नहीं होने वाला अगले महीने? किसी को मालूम है? बिकॉज देर इज ऑलवेज देर इज एनीवे अ प्रॉब्लम इनसाइड। एक तो प्रॉब्लम है ही ना, एक आध तो प्रॉब्लम है ही ना। So next week, next month, what will happen? Do you know? Because you are taking medicine. Medicine तो आप रोज ले रहे हो, कब कौन सा ऑर्गन फेल हो जाए, क्या प्रॉब्लम आ जाए, आपको मालूम है? नहीं मालूम। The sooner you start, the better it will be for you. जितना जल्दी शुरू करेंगे, जितना जल्दी कदम उठाएंगे, उतनी जल्दी आप इंश्योर करेंगे that you come out of your problem. Otherwise, जैसा चल रहा है वो तो चल ही रहा है। So nasal polyps निकलेंगे, निकल सकते हैं, we need to diagnose it and then see कि उसके लिए क्या करना। Right. So with this, we would be closing our session. सेशन खत्म कर रहे हैं यहीं पर ही। आप में अभी भी अगर फ़ोन नंबर देना चाहें तो आप अपना शेयर कर सकते हैं। पोल पे रिस्पॉन्ड करें तो बेहतर।
हम लोग के लिए आसान हो जाता है, आपके लिए भी आसान हो जाता है, एंड सो ऑन. बट अदरवाइज वी वुड लव टू हैव यू ऑल. आप करीब 30-40 लोग हो यहाँ पे अभी, so we love to have you all in our session which is starting on 11th. Sunday का बैच है, so आप भी उसे ज्वाइन करें. और आप लोगों को सवाल हो तो ये मौका ना खोइए. अगर आपको हार्ट का, बीपी का या ओवरऑल कहिए कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मजबूत करने की इच्छा है प्रिवेंटिव पर्पसेस की वजह से भी, तो देन दिस इज वन ऑप्शन दैट यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर, बिकॉज दिस इज, I mean, 1% of the cost of what you otherwise would be spending, or maybe 2% or 3% at most. So it's better whether you look at it from a financial standpoint, or time, or even internal natural way of resurrecting yourself. So with that said, कोशिश करते हैं हम आपसे बातचीत करें, जल्दी करें, और होपफुली आप सेशन में भी ज्वाइन करें. बस इतना ही आज के लिए. Sir, you would want to add something? We can close the session. वो तो बात पहले भी बोल दिया कि you will have to take charge. ये ना सोचे कि कोई आके आपको ठीक करेगा, आपको ठीक होना है. And wherever your investment is, that thing grows. तो हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए, हेल्थ अच्छी हो जाएगी. बीमारी पे इन्वेस्ट करेंगे, बीमारी बढ़ जाएगी. जी. All right. Thank you for your time. Namaskar.